As we come before you, Lord Jesus, under your blood we come, desiring a sincere time of fellowship with you tonight once again in this youth forum. Please open thy word to us, Lord, like never before. Be with everyone who is sick and needy and heal them, Lord, and give and provide the needs of the needy according to your perfect will. Here we are, Lord Jesus, to worship you in spirit and in truth. Come, Lord, and deal with us. Open thy word to us. Show your words of life. It would be more than enough for us. Let every evil and demonic spirit, let every unbelief be taken away from our midst. In the name of Jesus Christ, our Lord, we ask this prayer. Amen. Let's sing the same song which is being played. Abba, Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore your own. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be. Oh, hallelujah, Jesus. That's right, Lord. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore your own. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be yours and yours alone. Thank you, Jesus. Yours and yours alone. That's my prayer tonight, Lord. That's our prayer, Lord Jesus. We just call yours and yours alone. Come to you in the beauty of holiness, in the provided place of worship, under the shed blood of the Lamb, in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. We praise your holy name. Yes, Lord, we worship you. I will sing to my Redeemer. I will sing to my Lord, my King. And I'll say how beautiful you are, Lord. Amen, amen, amen. How many of you read Graduation Day?
Branham preached it. Graduation day. This is the time for the graduation of the bride. Amen. Hallelujah. This is my beloved bride. Yariha. Oh, we praise you, Lord. Amen. The songs of the angels couldn't satisfy him. He needed a better worship. That's why under the blood of Jesus, we have the songs of the redeemed. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. We praise you, we praise you, we praise you. Hallelujah. Amen. Amen. Love you, Lord. Just love you, Lord. We just praise you, Lord. Hallelujah. Worship you, Lord. We praise you, Lord. We thank you, Lord. Praise you, Lord. Wonderful Jesus. My love, my care. My Lord. I praise you, praise you, praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the book of Hebrews, इब्रानियों की पुस्तक में chapter 11, उसके 11वें अध्याय में, that's the chapter of the bride. ये दुल्हन का अध्याय है। Verse 5 and verse 6. 5वीं और 6ठी आयत। By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and he can take you to the last limits. Amen. और वो आपको अंतिम चरम तक ले जा सकता है, To test you and your belief. ताकि वो आपके विश्वास को और आपकी परीक्षा ले। But belief is a natural thing for a believer. पर विश्वास एक स्वाभाविक चीज है एक विश्वासी के लिए। For he that cometh to God must believe that he is, that he is a rewarder of them that diligently seek him. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। We thank you, Abba Heavenly Father, that you are here tonight. Amen. Once again that night, Amen. a time of fellowship around the world. Yes, Lord. Hear the message of the rapture. Amen, Lord. Thank you, Father. Give us grace to understand these things, Yes, Lord. to understand these mysteries. Oh, that's right. Thank you, Father. Open thy word to us like never before, Yes, Lord. as we commit ourselves into your mighty hands of grace. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, the Lord, we ask this prayer. Amen. You all can be seated. आप सब बैठ सकते हैं। We are reading the message of the rapture, हम रैप्चर का संदेश पढ़ रहे हैं and we came across the 6 witnesses, और हम उन 6 गवाहों के साथ हमारा आमना सामना हुआ है and we are one of them. और हम उनमें से एक हैं। Amen. 3 in the old, 3 in the new. 3 पुराने नियम में और 3 नए नियम में। And we started with the first one, that's Enoch. और हमने पहले से शुरू किया है जो हनोक है, And we're trying to lay a background to understand our rapture. और हम एक भूमिका रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम समझें अपने स्वर्गारोहण को। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? May God help us tonight काश खुदावन हमारी मदद करे आज रात्रि to understand these things. ताकि हम इन चीजों को समझ पाएं। God really bless you. We saw last time खुदावन आपको वास्तविकता में बरकत दे। हमने पिछली दफा देखा some
thing called genetic expressions. जिसको कहते हैं जीवांशों का प्रगटीकरण। And we saw how the genes express. और हमने देखा कि कैसे ये जीवांश अपने चरित्र को प्रकट करती हैं। How the DNA produces a messenger RNA. कैसे एक डीएनए जो होता है वो एक संदेशवाहक आरएनए को बनाता है। And they align all the molecules of the protein and the synthesis takes place. और उसके साथ तमाम जो मॉलिक्यूल जो अणु हैं प्रोटीन के वो एक तार में बनते चले जाते हैं और सिंथेसिस अर्थात प्रोटीन उत्पाद होता है। I'm going to come to a very, very important fact tonight. अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य पे आज रात्रि आना चाहता हूं। I mentioned it last time, जिसका मैंने उल्लेख पिछली दफा दिया था, but I'd like to continue on if the grace of the Lord permit. पर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि खुदावन का अनुग्रह हमें अनुमति दे। And may God open it up to your heart. काश खुदावन आपके हृदयों के लिए इसको खोल दे। Now, we saw the genetic expression. हमने जीवांशों के प्रगटीकरण को देखा था। Let's say this is a strand of DNA. आइए मान लेते हैं ये डीएनए की एक पंक्ति है, एक टुकड़ा है, which needs to express. जिसको जरूरत है कि वो अपने चरित्र को जो उसके अंदर है वो प्रकट करे। Say this much portion of the DNA is a gene. मान लीजिए इतना हिस्सा, इतना टुकड़ा जो है डीएनए का एक जीवांश है। And this gene would definitely make a particular protein. और ये जो जीवांश है वो वास्तविकता में एक खास प्रोटीन को पैदा करेगा, which would bring a particular expression. जो कि एक खास किस्म का एक प्रगटीकरण लेके आएगा। Say blue eyes, black eyes, hairs, so many things. मान लीजिए जैसा हो सकता है नीली आंखें, काली आंखें और काले बाल, बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं। So this is a gene and this produces a protein. तो ये एक जीवांश और एक प्रोटीन को पैदा करता है। For this it needs to produce, as we saw last time, a mRNA that comes out and then protein is produced. जिसको हमने पिछली दफा देखा था, जैसे कि इस प्रगटीकरण को लाने के लिए इस जीवांश के एक एमआरएनए बनता है और फिर वो आगे बढ़ के प्रोटीन को पैदा करता है। Now this gene can only do this. अब ये जीवांश जो है ये केवल इस काम को कर सकता है। Now you all know about switches. अब आप सब जो स्विच होते हैं उनके बारे में भली भांति जानते हैं। There is an off position and there is an on position. एक खुली स्थिति होती है और एक बंद स्थिति, ऑफ स्थिति और एक ऑन स्थिति होती है। Say I put that switch off. मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने इस स्विच को ऑफ कर दिया, The light goes off. तो बत्ती बंद हो जाएगी, बिजली लाइट जो है बंद हो जाएगी। I put it on. मैंने उसको ऑन किया, The light comes. तो लाइट आ जाएगी। You can call light an expression. आप इस बिजली के जलने को, इस लाइट के आने को एक प्रगटीकरण के रूप में समझ सकते हैं। But that is controlled by a switch. पर यह नियंत्रित हो रहा है एक स्विच के द्वारा, which can go on and off. जो कि कभी तो ऑफ हो सकता है और कभी ऑन हो सकता है। Even so it happens with the genes. इसी रीति से जीवांशों के साथ भी होता है that genes can be put off and on. कि इन जीवांशों को कभी ऑफ कर दिया जा सकता है और कभी ऑन किया जा सकता है। Only when they are in the on position. जब केवल वो ऑन की स्थिति में होंगे, they produce the expressions. तब वो अपने चरित्रों को, अपने प्रगटीकरण को लेकर आएंगे। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? In the off position, बंद अर्थात ऑफ की स्थिति में they cannot do anything. वो कुछ काम नहीं कर सकते। This part of the synthesis, ये जो सिंथेसिस, ये प्रोटीन उत्पाद का जो हिस्सा है, the whole process doesn't take place ये पूरी क्रिया होती ही नहीं in the off position. इस ऑफ स्थिति में। Now, अब normally सामान्य तौर पे it can be off or on. ये हो सकता है ऑफ हो या ऑन हो। Normally it is off. ज्यादातर अक्सर ये ऑफ ही होता है। There has to be something else कुछ और की जरूरत होती है which regulates the expression of this gene. जो कि इस जीवांश के प्रगटीकरण को, चरित्र प्रदर्शन को नियंत्रित करे। For that there are some other sequences very near to this gene lying on the same DNA. उसके लिए कुछ और सीक्वेंस होती हैं, श्रृंखलाएं होती हैं जो कि इस जीन के ठीक बगल में होती हैं, उसी डीएनए पे स्थित होती हैं।
and they are called regulators. और इन्हें बोला जाता है रेगुलेटर, नियंत्रक। What does a regulator do? ये रेगुलेटर करता क्या है? It sends a signal ये एक संकेत भेजता है to this gene. इस जीवांश के पास। Of course, I'm saying it in a very superficial language. The process is very complex. जो क्रिया है वो बहुत जटिल है, बट मैं उसको एक ऊपरी तरीके से बोल रहा हूं To bring the message to you. ताकि मैं आपके पास संदेश पहुंचाऊं। This regulator switches this gene off. ये जो रेगुलेटर है ये इस जीवांश जीन को ऑफ कर देता है। Are you listening? क्या आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? And it can make it on. और ये रेगुलेटर इसको ऑन भी कर सकता है। If the regulator puts it off, अगर ये रेगुलेटर इसको ऑफ कर दे and I have another regulator और मेरे पास एक और रेगुलेटर आए to off this one, जो कि इस रेगुलेटर को भी ऑफ कर दे, then when this becomes off, तो जब ये रेगुलेटर ऑफ हो जाएगा this becomes on. तो ये अपने आप चालू हो जाएगा। Are you understanding? आमेन, आमेन। It's a very normal process. ये एक बहुत साधारण तरीका है। You make this off, आप इसको बंद कर दीजिए this becomes on. तो ये अपने आप चालू हो जाएगा। Are you understanding? So in this manner, तो इस तरीके से this gene's expression can be put off and on. इस तरीके से ये जीवांशों का जो प्रदर्शन है ये चालू किया जा सकता है और बंद किया जा सकता है। And it depends on the conditions. और ये आधारित होता है, निर्धारित होता है उन परिस्थितियों पे When the right condition arrives, which puts a demand for proteins to be synthesized, this off is made on. जब जो ठीक परिस्थिति आती है जिसमें एक मांग की जाती है कि प्रोटीनों की मांग हो, तो ये जीवांश जो है चालू कर दिया जाता है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Otherwise, it is off. नहीं तो ये बंद रहेगा। Now I'll speak your language. अब मैं आपकी भाषा में बोलूंगा। In the off position, I will say the gene is sealed. आमेन। जो बंद स्थिति है, ऑफ स्थिति है, मैं कहूंगा जीवांश मोहरबंदित है। But when the gene is switched on, पर जब ये जीवांश चालू किया जाता है, ऑन किया जाता है, the block is taken away. तो जो बाधा है, जो रोधक है, वो हटा दिया जाता है। The gene is unsealed. जो जीवांश है उसकी मोहर टूट जाती है, खुल जाता है जीवांश। Now you can never have a messenger RNA until the gene is unsealed. आमेन। अब आपके पास कभी भी संदेशवाहक आरएनए नहीं हो सकता जब तक कि जीवांश की मोहरें ना खोली जाएं। Until the gene is unsealed, जब तक कि जीवांश खुल ना जाए there can be no process. कोई भी क्रिया चालू नहीं हो सकती। The mRNA will not form on the DNA template. ये डीएनए की पट्टी पे एमआरएनए नहीं बनेगा जब तक कि The gene is switched on. जब तक कि ये जीवांश चालू ना कर दिया जाए। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? In other words, दूसरे शब्दों में you will never have a messenger आपके पास कभी भी संदेशवाहक नहीं होगा till there is an unsealing first. जब तक कि एक मोहर तोड़ा जाना ना हो। Now read the plan in the first seal. आमेन। अब पढ़िए योजना को पहली मोहर में। What happened in the heaven? स्वर्ग में क्या हुआ? Announcement. एक घोषणा हुई। What is the announcement? ये घोषणा क्या है? A seal has been opened. एक मोहर तोड़ दी गई है। What happened? क्या हुआ? And when a seal is opened, जब एक मोहर खुल जाती है a mystery is unfolded. एक भेद प्रकट किया जाता है, And when a mystery is unfolded, और जब एक भेद खोला जाता है a trumpet sounds. एक तुरी फूंक जाती है। Who sounds the trumpet? ये तुरी को कौन फूंकता है? The messenger of that age उस युग का संदेशवाहक। आमेन। catches the mystery of God, जो कि खुदा के भेद को पकड़ता है, not fully yet जो revealed, कि अभी तक के पूर्ण रूप से जाहिर नहीं हुई है, and preaches it in his church age. और अपनी कलीसिया काल में आके उसको प्रचार करता है। But he can never preach it पर वो उसको कभी भी प्रचार नहीं कर सकता if the seal has not been opened. अगर ये मोहर ना खुले तो। So before the messenger can come तो इससे पहले कि संदेशवाहक आ पाए to sound his message, ताकि वो अपने संदेश को फूके, the unsealing takes place first. पहले मोहर का टूटना होता है। If you follow that trend, जबकि हम इस दौर के अंदर आगे बढ़ते हैं then it would be very natural to तो ये understand स्वाभाविक होगा समझने के लिए that the seventh angel cannot sound his message till the seventh seal has been opened. आमेन कि सातवां दूत जो है अपने संदेश को फूंक नहीं सकता जब तक कि सातवीं मोहर ना खुल जाए।
it is immaterial to say that the seventh seal is not open, then how did the seventh messenger preach his message? ये बड़ी बेमतलब की बात है कहना कि सातवीं मोहर नहीं खुली तो फिर संदेशवाहक जो सातवां दूत है वो कैसे अपने संदेश को प्रचार कर सकता है? He can only sound his message वो केवल अपने संदेश को फूंक तभी सकता है when that seal is open. जब वो मोहर खुल जाए। Now we are talking about unsealing of what? अब हम बात जो कर रहे हैं वो किसके खुलने की कर रहे हैं? Unsealing of the word. इस वचन के खुलासे की बात कर रहे हैं। Unsealing, and who is the word? और ये वचन कौन है? Not just a book. केवल एक पुस्तक नहीं, The word is God. वचन ही खुदा है, That word is Christ. वचन मसीह है। So you are unsealing a person. तो आप एक शख्सियत को खोल रहे हैं। How do you unseal that person? कैसे आप उसकी मोहर तोड़ते हैं एक शख्सियत की? When you unseal his DNA. जब आप उसके डीएनए को खोलते हैं। That DNA contains every information Amen. that makes that man. आमेन। उस डीएनए में हर एक वो सूचना और जानकारी पाई जाती है जो कि उस आदमी को बनाती है। So when you unseal the तो DNA, जब आप डीएनए को खोलते हैं you are unsealing that man. तो आप उस आदमी को, उस शख्सियत को खोल रहे हैं। Is that Amen. much clear? क्या इतना स्पष्ट है? In other words, दूसरे शब्दों में when the seventh seals were opened, जब मोहरें खुली, Christ was unsealed. मसीह खोला गया, The word was unsealed. वचन जो है उसकी मोहरें तोड़ी गईं। But brother, पर भाई, you were just talking about genes getting unsealed. अभी तो आप बात कर रहे थे जीवांशों के खुलने की। You're right. आप ठीक हैं। Your spiritual genes are the word. आपकी आत्मिक जीवांश वचन है। So when the word was opened, तो जब वचन खोला गया, your genes were opened. आपके जीवांश भी खोल दिए गए। आमीन। Some expressions which never took place. कुछ ऐसे खास प्रदर्शन, चरित्र प्रदर्शन जो कभी नहीं हुए थे। Now try to understand. अबे समझने की कोशिश The करिए। gene is always there. जीवांश तो हमेशा से था वहां पर, It was always there. वो हमेशा से वहां मौजूद था। Yet there was no expression तो भी कोई भी प्रकटीकरण, कोई भी प्रदर्शन नहीं हो रहा था, because it was in an off position. क्योंकि वो एक बंद स्थिति में था। When you put it on, जब आप उसको चालू करते हैं then it starts expressing. तब वो अपने प्रदर्शन को चालू करता है। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, Luther could not express what we express. लूथर वो प्रदर्शित नहीं कर पाया जो हम अब प्रदर्शित करते हैं। But I want to tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, Being in the family of God खुदा के परिवार में होने के नाते and handing over of the gospel since the time of the apostles till the last age, और उस सुपुर्दगी के द्वारा की जो कि प्रेरितों के समय से अभी तक आखिरी युग तक की आई है, generation to generation, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कि सुसमाचार का हुआ है, the spiritual genes were transferred. जो आत्मिक जीवान से वो स्थानांतरित किए गए। Genes are never got from the air. जो जीवान से कभी हवा में से नहीं पकड़े जाते। Genes are inherited by virtue of a birth. जो जीवान से वो पैदाइश के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। To have some particular genes, you have to be born in a family. आमीन। कुछ खास किस्म के जीवांश होने के लिए आपको एक खास परिवार में पैदा होना अनिवार्य है। That is why इसलिए when the first rapture of Enoch is mentioned, जब पहला रैप्चर हनोक का उल्लेखित किया गया है, it is mentioned in a book of generations. ये पीढ़ियों की, उत्पत्तियों की पुस्तक में पाया जाता है। Rapture was something which was inherited. रैप्चर कुछ ऐसी चीज थी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त की गई। Rapture was where in Enoch's genes, रैप्चर जहां पर हनोक की जीवांशों में था, yet तो भी the previous 6 had it. तो भी जबकि उन पिछले 6 में ये पाया जाता था। The genes of rapture रैप्चर के जीवांश were in Adam, आदम में थे, but they were shut off. पर वो बंद कर दिए गए थे। आमीन। Lest he eat of the tree of life आमीन। कहीं ऐसा ना हो ये जीवन के वृक्ष में से खा ले and live forever. और युगानुयुग जीवित रहे। God knew खुदावन जानते थे there is something in Adam कुछ है आदम में। that if this fruit of the tree of life goes in, आमीन। क्या कि अगर ये जीवन के वृक्ष का जो फल है वो इसके अंदर चला जाए, that regulator which has switched off that gene for the Amen. rapture would be put off and this would be made on. जो रेगुलेटर, जो नियंत्रक है वो
जो कि उसने जीवांश रैप्चर के जीवांश को बंद कर रखा है, वो बंद कर दिया जाएगा, वो रेगुलेटर बंद कर दिया जाएगा और ये जीवांश जग जाएगा And जो कि rapture- रैप्चर का है, And Adam would never die. और आदम कभी नहीं मरेगा। He would come back to where he was. वो वापस वहीं उस स्थिति पे आ जाएगा जहां पर वो था। Are you knowing that? क्या आप इस बात को जान रहे हैं? That amply proves ये साफ साफ रीति से जाहिर करता है, साबित करता है that restoration was in Adam. कि बहालीकरण आदम में था। आमीन। He could come back to his original state. वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकता था। He only needed that fruit of the tree of life. उसे केवल उस जीवन के वृक्ष के फल की जरूरत थी। आमीन। God stopped that खुदा ने उसको रोक दिया because he didn't want rapture to be expressed in that age. क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रैप्चर उस युग में प्रदर्शित किया जाए। Then the Amen. rapture came to Abel. तब रैप्चर हाबिल के पास आया, Then the rapture came to Seth. पर फिर रैप्चर शेत के पास आया, Then the rapture came to Enosh. फिर रैप्चर इनोश के पास आया, Canaan, कनान के पास, महललील के पास, Jared. यारेद के पास। Everyone had rapture in them. हर एक के अंदर वो रैप्चर पाया जाता था, But it was in a shut off पर position. वो एक बंद स्थिति में था। Those genes were sealed. वो जीवांश मोहर बंदित थे। But when that seventh generation came, पर जब वो सातवीं पीढ़ी आई which was Enoch, जो कि हनोक था, God unsealed Amen. those genes. खुदा ने उन जीवांशों को खोल दिया। And when the unsealing took place, और जब ये खुलासा हुआ, Enoch came to a knowing हनोक एक जानकारी के स्तर पे पहुंचा who he is, कि वो कौन है, who God is, कौन खुदावंद what है, is his relation with God. उसका क्या संबंध खुदा के साथ है। He wrote a complete Bible. उसने एक संपूर्ण बाइबल लिख दी And one fine day, और एक खास दिन his faith was so strong. उसका विश्वास इतना बलिष्ठ हो गया। Brother Branham said, भाई ब्रह्म ने कहा he walked up the King's Highway वो राजा के राजमार्ग पे चलता चला गया and walked all the way to heaven. और वो ठीक उस स्वर्ग में अय्याम में पहुंच गया। You can heal your own eyes. आप अपनी आंखों को खुद चंगाई दे सकते हैं, You can heal your own diseases. आप अपनी बीमारियों को खुद चंगा कर सकते हैं। You don't need a healer. आपको एक चंगा करने वाले की आवश्यकता नहीं है। The healing is in you. चंगाई आपके अंदर है, Resurrection is in you. पुनरुत्थान आपके अंदर है, Rapture is in you. रैप्चर आपके अंदर है। And the best part, और सबसे खूबसूरत बात ये, in this age, इस युग में it has been unsealed. ये मोहर इसकी खोल दी गई है। That is why John was given the book. इसलिए यूहन्ना को वो पुस्तक दी गई। When he ate the book जब उसने पुस्तक खाई and his tummy became bitter, और उसका पेट कड़वा हो गया, what actually happened? वास्तविकता में क्या हुआ? His genes got unsealed. उसके जीवांशों की मोहरें टूट गई थी। Then John could understand तब यूहन्ना ये समझ पाया who he is. कि वो कौन था। Amen. Are you catching the mystery? क्या भेद पकड़ रहे हैं? That unsealing took place in the seventh generation, वो मोहरों का टूटना सातवीं पीढ़ी में घटा, though every age had it. जबकि हर एक युग में वो पाया जाता था। It had a partial expression. उनका एक अधूरा प्रगटीकरण था। Abel knew आबिल ये जानता था there is no fellowship besides the blood. लहू के अलावा कोई संगति नहीं है, That's why he brought the blood of the lamb. इसलिए वो मेमने का लहू लेके आया। Why? क्यों? What kind of faith he had? किस किस्म का विश्वास उसके पास था? He knew वो जानता था if the blood can come, अगर लहू आ सकता है I can find my way back to the tree of life. तो मैं अपने ठीक मार्ग को ढूंढ पाऊंगा वापस जीवन के वृक्ष तक के। And if I can find my way back, और अगर मैं अपने मार्ग को ढूंढ पाऊं then I can eat that fruit. तो मैं फिर उस फल को भी खा पाऊंगा। And if I can eat that और fruit, अगर मैं उस फल को खा पाऊं I can never die तो again. फिर मैं कभी वहां आगे को नहीं मरूंगा। Amen. I want to say today evening, brother, sister, आज शाम मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, that same faith continued in the 6 generations. वही सामान्य विश्वास तमाम 6 पीढ़ियों में लगातार आगे बढ़ता रहा। Enoch started with that faith. हनोक उस विश्वास से शुरू हुआ, Fellowship under the blood. लहू के नीचे सहभागिता, That was his starting point. ये उसका आरंभ बिंदु था। But where did he end? पर उसने असमाप्त कहाँ किया? A rapture. एक रैप्चर में। Amen. When he was gone. जबकि वो चला गया, गायब हो Amen. गया। Amen. I want to say this. मैं कहना चाहता हूँ, Abel brought the Passover lamb. हाबिल फसे का मेमना लेके आया। Amen. Amen.
But by the time Enoch came, पर जब तक कि हनोक आया, it was tabernacles. ये झोपड़ियों का समय था. The Amen. seventh generation. वो 7वीं पीढ़ी, When the booths were to be broken. जब झोपड़ियां तोड़ी जानी थी. If you have the lamb. अगर आपके पास मेमना है, If you have heard the trumpet. अगर आपने तुरहियों को सुना है, If you have been gathered to the homeland. अगर आप भूमि में इकट्ठे किए गए हैं, If you have written the complete Bible. अगर आपने पूरी बाइबल लिखी है, Hey, all I said. You have written the complete Bible. Amen. ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, आपने पूरी बाइबल लिखी है. When you can see yourself everywhere. जब आप अपने आप को हर जगह देख पाते हैं. Genesis 1:1 to Revelations 22. उत्पत्ति 1:1 से लेके उस प्रकाश वाक्य 22 तक के, You and our Lord Jesus. आप और हमारे प्रभु यीशु मसीह, Then you are ready तब आप तैयार हैं to fly home. ताकि उड़ के घर वापस पहुंचे. This is the age. क्योंकि यही वो युग है, This is the time ये वो समय है when these things will be done. जब ये चीजें होंगी. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Catch the mystery. भेद को पकड़िए, Catch the word. वचन को पकड़िए. There needed to be an unsealing. जरूरत थी एक खुलासे की. Amen. I'll speak in advance, मैं पहले से बोलूंगा, but I'll say it. पर मैं इसको कहूंगा. When you come to the next rapture, जब आप अगले रैप्चर पे आएंगे, which is the rapture of Elijah, जो कि एलिया का स्वर्गारोहण है, it took place in which chapter? ये कौन से अध्याय में घटा? 2 Kings 2. दूसरा राजा दूसरे अध्याय में. But before that rapture could come, पर इससे पहले वो रैप्चर आ पाए, in 1 Kings chapter 18, पहला राजा 18वें अध्याय में he went to a mountain. वो एक पहाड़ पे गया. Amen. The one who was raptured वो जिसका रैप्चर हुआ went to that mountain. उस पहाड़ पे गया. Amen. What happened there? और वहां पर क्या हुआ? God opened the seals. खुदा ने मोहरों को खोला. Amen. Without an unsealing, there is no rapture. एक खुलासे के बगैर कोई रैप्चर नहीं है. An unsealing has to take place first. पहले खुलासा होना जरूरी है, Then only rapture can happen. तभी एक रैप्चर घट सकता है. What about Jesus? यीशु के बारे में क्या? What about the Old Testament saints? पुराने नियम के संतों के बारे में क्या? The Father unsealed the Son. पिता ने पुत्र को खोल दिया. Every day when he had fellowship with the Father, हर दिन जब उसकी मुलाकात संगति पिता के साथ होती थी, the Father showed him what he is पिता उसे वो दिखाता था जो कुछ वो है and what he has to do. और क्या काम उसे करना है. He knew the glory he had with the Father. वो उस महिमा को जानता था जो उसके पास पिता के साथ थी. For him, his life was unsealed. उसके लिए उसका जीवन खुल रहा था. Then what about the other people? तो फिर बाकियों के बारे में क्या? The Old Testament saints. वे बाकी पुराने नियम के संत, They were waiting in the low parts of the वो earth. पृथ्वी के निचले स्थानों में इंतजार कर रहे थे. Why? क्यों? The blood cell was not yet broken. वो लहू का कोश अभी भी टूटा नहीं था. But on the cross, पर क्रूस पे when the blood cell was broken, जब वो लहू का कोश तोड़ा गया, when it was unsealed, जब उसको खोला गया and the life came out, और उसका जीवन बाहर निकला, when our Lord gave the cup, जब हमारे प्रभु ने वो प्याला दिया, what did he say? उन्होंने क्या कहा? It is the New Testament, a book in my blood. ये एक नई वाचा है, एक पुस्तक मेरे लहू में. When the blood was broken, Amen. जब लहू तोड़ा गया, the book was released. तो पुस्तक मुहैया की गई. And when the book was released, और जब पुस्तक मुहैया की गई, now they are ready for a rapture. अब वो तैयार है एक रैप्चर के लिए. Rapture number 5, रैप्चर संख्या 5, which is you and me. जो कि आप और मैं हैं. It could not take place ये घट नहीं सकता था till there was an unsealing of the word. जब तक कि एक वचन का खुलासा ना हो जाए. That is why इसलिए in Revelation 10, प्रकाशित वाक्य 10 में the mighty angel came down बलि स्वर्गदूत नीचे उतर के आया and brought the open book. और उस खुली पुस्तक को लेके In आया. Revelations 5, प्रकाशित वाक्य 5 में John knew यूहन्ना जानता था the whole creation will be lost. पूरी जो सृष्टि है बर्बाद हो जाएगी. I cannot go to my theophany. मैं अब अपनी थियोफनी में वापस जा नहीं पाऊंगा. I cannot find my way back मैं अपने वापस वहां पर रास्ते को ढूंढ नहीं पाऊंगा if this book is not अगर open. ये पुस्तक ना खोल दी जाए. Because he knew क्योंकि वो जानता था returning back is based on unsealing. Amen. वापस लौटना आधारित है एक खुलासे के ऊपर. When the unsealing takes place, जब ये खुलासा घटता है, then the
a person is ready तब एक शख्स तैयार होता to है return back. ताकि वो वापस लौट पाए। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? That is why in our age, इसलिए हमारे युग में the fullness of the word वचन की परिपूर्णता was unsealed ये खोल दी गई for a rapture. एक रैप्चर के लिए। When the unsealing took place जब ये खुलासा घटा and seven thunders uttered their voices. और सात गर्जन के शब्दों ने अपनी आवाजों को बोला, समझ में आ रही है आपके? Now the prophet can preach rapture. अब आमेन, अब नबी रैप्चर का प्रचार कर सकता है। He can't preach rapture until the book is open. वो रैप्चर का प्रचार तब तक नहीं कर सकता जब तक ये पुस्तक ना खुल जाए। He cannot preach the process till the book is open. आमेन, वो क्रिया का प्रचार नहीं कर सकता जब तक ये पुस्तक ना खोल दी जाए। He always knew there will be a rapture. वो हमेशा से जानता था कि एक रैप्चर होगा, Even before the seals. यहाँ तक कि मोहरों के खुलने से पहले भी। Read the message. संदेशों को पढ़िए। Sudden secret catching away of the bride. अचानक गुप्त दुल्हन का उठा लिया जाना And many more messages. और बहुत सारे ऐसे संदेश हैं Where he talks about the catching away of the bride. जहां पर दुल्हन के उठाए ले जाने के बारे में बात करते हैं। How the bodies of Abraham and Sarah were changed. कैसे इब्राहिम और सारा के देह बदल गई। He talked it in every message. उन्होंने हर एक संदेश में इसके बारे में बात की है। What did he not preach? क्या थी वो चीज जो उन्होंने तब प्रचार नहीं करी थी? He preached the rapture. उन्होंने रैप्चर का प्रचार तो किया, But what did not preach? पर वो क्या चीज थी जो उन्होंने नहीं प्रचार The करी? process. जो क्रिया थी वो उन्होंने He प्रचार never नहीं करी। explained what the shout is. उन्होंने कभी नहीं समझाया ललकार क्या है, What the voice is. प्रधान दूत का शब्द क्या है, What the trump is. खुदा की तुरही क्या है। He never placed it in the process उन्होंने उस रैप्चर को कभी स्थान नहीं दिया उस क्रिया के अंदर होते हुए, until the book got opened. जब तक कि पुस्तक नहीं खुल गई। Amen. He couldn't preach clearly 1 Thessalonians 4. वो स्पष्ट रीति से पहला थिस्सलुनीके को चौथा अध्याय नहीं प्रचार कर सकते थे। He cannot preach what this process is. वो कभी प्रचार नहीं कर पाते थे क्या ये क्रिया है। He knew there will be a rapture, वो जानते थे कि एक रैप्चर होगा, but he never could explain what the shout is, पर वो समझा नहीं सकते थे कि ये ललकार है क्या, what the voice ये is, प्रधान दूत का शब्द क्या है, what the trump is, खुदा की तुरही क्या है, and how the bride would be raptured. और कैसे ये दुल्हन का रैप्चर हो जाएगा। He couldn't explain that वो इसे समझा नहीं सकते थे till the book was opened. जब तक ये पुस्तक ना खुल जाए। When the book got opened, जब ये पुस्तक खुल गई, the rapture genes got unsealed. ये रैप्चर के जीवांशों की मोहरें टूट गईं। And then he said, और तब उन्होंने कहा, the book never says, oh man, never, वो पुस्तक कभी भी और मैं नेवल नहीं कहती, or a name like this or name like या that. एक नाम ऐसे या एक नाम वैसे। What it speaks is the mystery जो वो- behind that name. आमेन, जो वो बोलती है वो ये है, वो भेद जो कि उस खास नाम के पीछे पाया जाता है। And wherever that name is standing और जब कभी वो नाम खड़ा हुआ होता है and hears his mystery being spoken, और अपने उस भेद को सुनता है जो कि बोली जा रही है, he recognizes that, वो उसे पहचानता है accepts that. और उसे ग्रहण करता है। That is when he receives his rapturing faith. ये वो तब ये स्थिति आती है कि वो अपने उड़ाने वाले विश्वास को प्राप्त करता है। His genes got unsealed. उसके जीवांशों का खुलासा हुआ। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Now, if you read the 7 seals carefully, sit down, बैठिए कृपया, अगर आप 7 मोहरें पढ़ें ध्यान पूर्वक, because I'm preaching to the bride. क्योंकि मैं दुल्हन को प्रचार कर रहा हूं। I believe the bride would understand what I'm preaching. मैं विश्वास करता हूं कि दुल्हन समझेंगी कि मैं क्या प्रचार कर रहा हूं। I'm seeing quite a big crowd today. आज मैं एक बड़ी भीड़ को देख रहा हूं आज। God bless you. खुदावन आपको आशीष दें। I want to tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। Coming at 9 o'clock means that you are really intending to hear the word. आमीन। 9 बजे जब आप आते हैं सभा में तो वास्तविकता ये पता लगता है कि आप खुदा के वचन को सुनना चाहते हैं। You have not come here to waste your time. आप अपने समय को बर्बाद करने के लिए यहाँ नहीं आए। You mean business. आपको वास्तविकता में बिजनेस से मतलब है। And when you mean business, और जब आप बिजनेस से मतलब रखते हैं then God also is there तब खुदावन भी यहाँ पर मौजूद है to meet the call of the deep in your heart. ताकि उस गहराओं की मांग को संतुष्ट कर पाए आपके हृदय में जो पाई जाती है। Please try to hear very carefully. बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करें। Those genes were in Adam वो जीवांश आदम में थे and all the 6 generations, और वे तमाम 6 पीढ़ियां, but it got unsealed in Enoch. पर ये खुली हनोक के अंदर। That means Enoch must have eaten from the book. इसका मतलब ये है हनोक ने उस पुस्तक में से खाया होगा। Yeah, that's right. ये बात ठीक है।
With whom did he have fellowship? किसके साथ उसकी संगति हुई? Then we saw the seventh step, तब हमने देखा वो 7वीं सीढ़ी, and an introducer, और वहां पर एक परिचय देने वाला, the one who introduced him to the king. वो जिसने उसका परिचय दिया राजा के सामने, He taught him these things. उसने उसे ये बातें सिखाई। And when he received from God these mysteries, और जब उसको प्राप्त हुई ये तमाम भेद खुदावंद के द्वारा, brother, that was enough for him भाई ये काफी था उसके लिए to make him a mystic. कि उसको एक रहस्यमयी बना दे। But Branham said in perfect faith, अब्राहम ने सिद्ध विश्वास में कहा, the real true believer is a mystic to the world. आमेन, एक वास्तविक जो विश्वासी होता है वो दुनिया के लिए एक रहस्यमयी होता है, And you can't understand him. और आप उसको समझ नहीं सकते। He's like a wind. वो एक वायु के समान है। You don't know from where it came and where it goes. आमेन, आप नहीं जानते कि वो कहां से आती है और कहां जाती है। That is how a real believer is. यही किस्म है एक विश्वासी की जो वास्तविक है। But when the unsealing takes place, पर जब एक खुलासा घटता है, then the believer understands तब ये विश्वासी समझता है who he is. कि वो कौन है। आमेन। Elijah's time, एलिया का समय, the book was open. पुस्तक खोल दी गई। In the Lord time of Lord Jesus, यीशु मसीह के समय में he was the book open. वो खुद खुली पुस्तक था। Then on the cross, तो क्रूस पे the blood cell was open. जो लहू का कोश है वो खोल दिया गया। Rapture number 5, रैप्चर नंबर 5, 7 seals are open. 7 मोहरें आज खुल चुकी हैं। Moses and Elijah, मूसा और एलिया, Christ reveals himself. Joseph revealing himself to his brothers. आमेन, मसीह अपने आप को स्वयं प्रकट करता है। यूसुफ अपने आप को स्वयं प्रकट करता है अपने भाइयों के सामने। Unsealing before 1,44,000. एक खुलासा मोहरों का 1,44,000 के सामने। Then comes the rapture. तब आता है रैप्चर। Always, whenever a rapture came, हमेशा जब कभी एक रैप्चर आया है, before the rapture there was an unsealing. रैप्चर से पहले एक खुलासा हमेशा रहा है। And I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूं, if that unsealing has taken place in our age, अगर वो खुलासा हमारे युग में घटा है, then the prophet preached rapture. तब नबी ने वो रैप्चर का संदेश प्रचार किया। 2 years later, 2 साल बाद 63 preached the seals. 63 में मोहरों का प्रचार किया। He knew there were 7 angels. वो जानते थे कि 7 दूत हैं वो, But 65 पर 65 में turned the picture. पिक्चर को मोड़ दिया। Another unsealing. एक और खुलासा हुआ। Oh, this is the face of Christ. ओ ये तो मसीह का चेहरा है। आमेन। Then another unsealing. फिर एक और खुलासा, Coronado Forest. कोरोनाडो फॉरेस्ट, The name of the mountain is Sunset. जो पहाड़ का नाम है वो सनसेट है। And he started placing it in scriptures. और उन्होंने उसको स्थान देना चालू किया वचनों में। Zechariah 14. जकरिया 14वां अध्याय, It shall be light in the evening time. सांझ के समय उजियाला होगा। Sunset time. सनसेट के समय पे, Sunset mountain. सनसेट पहाड़ सूर्यास्त के समय पे God was opening one after the other. खुदावन खुलासा कर रहे थे एक के बाद एक। And आमेन। when that unsealing took और place, जब वो खुलासा हुआ, now he was ready अब वो तैयार था to preach the conditions for the rapture. ताकि वो रैप्चर की तमाम परिस्थितियों और हालातों का प्रचार करे। Even before that, यहाँ तक कि उससे पहले when he went west जब वो पश्चिम गया and had a 3 days experience in Catalina, और उसका 3 दिन का तजुर्बा रहा कैटलीना पहाड़ों में, when he saw the squirrel dead, जब उसने उस गिलहरी को मरा देखा, when he saw the 7th dove, जब उसने उस 7वीं फाख्ता को देखा, when he saw the eagle flying, जब उसने उस उड़ते उकाब को देखा, an unsealing took place. एक खुलासा घटा। You know what he said? आप जानते हैं क्या हुआ? That dove क्या उन्होंने led कहा? me to a faith I Amen. never had before. आपको मालूम उन्होंने क्या कहा? उस फाख्ता ने मेरी एक ऐसे विश्वास में अगुवाई करी है जो मेरे पास कभी पहले नहीं था। In other words, I have seen things which I have never seen before. दूसरे शब्दों में मैंने कुछ ऐसी चीजों को देखा जो मैंने कभी उन्हें पहले नहीं देखा था। Now when he came to Shreveport, अब वो जब कि श्रीपोर्ट में आते हैं, his main intention was preaching the rapture. आमेन, उनका मुख्य उद्देश्य रैप्चर का प्रचार करना था। To build the background for that, उसकी एक भूमिका बनाने के लिए he started with I heard, now I see. वो शुरू करते हैं मैंने सुना था पर मैं अब देखता हूँ। Then he started preaching invisible union. तब वो आगे प्रचार करना चालू करते हैं अदृश्य मिलन। Then he starts preaching God's chosen place of worship. तब वो प्रचार करना शुरू करते हैं खुदा का चुनाव आराधना का स्थान। Why? क्यों? Rapture is in the provided place. जो रैप्चर है वो नियुक्त स्थान में पाया जाता है। When you get the revelation of the chosen place, जब आपको मुहैया किए स्थान का प्रकाशन मिलता है, then you are standing in your place तब आप अपने स्थान में खड़े होते हैं to be changed. ताकि आप बदल जाएं। What is your provided place? आपका मुहैया किया हुआ स्थान क्या है? Your
provided place आपका मुहैया किया हुआ स्थान, where He has put His name. जहां पर उसने अपने नाम को रखा है। Can I tell you? क्या मैं आपको बता सकता हूं? This is the DNA, say, of, let's say, and give an example. Brother Naveen का ही नाम हमेशा आता है. Say, this is the DNA of Brother Naveen Peter. मान लीजिए ये डीएनए है भाई नवीन पीटर का। Can I say something? क्या मैं कुछ कह सकता हूं? On every gene, the name Naveen is written. हर एक जीवांश पे वो नाम नवीन लिखा है। That's right. ये बात सच है। This gene cannot belong to Nishant. ये जीवांश जो है भाई निशांत का नहीं हो सकता। This gene can only belong to Brother Naveen. ये जीवांश केवल भाई नवीन का ही हो सकता है। Even so, यहां तक कि every gene of God, इसी रीति से हर एक खुदा का जीवांश, every gene of Jesus Christ हर एक यीशु मसीह का जीवांश, had His name written on that. आमेन, उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ पाया जाता था। Your gene, आपका जीवांश which belonged to Jesus, जो कि यीशु का है, had the name of Jesus. उसके ऊपर यीशु लिखा हुआ था। And when you get a revelation of your gene, और जब आपको आपके जीवांश का प्रकाशन मिलता है, you stand in your place आप अपने स्थान पे खड़े होते हैं where Jesus has put His name. जहां पर यीशु ने अपने नाम को रखा है। आमेन, आमेन, On His genes. अपने जीवांशों के ऊपर। आमेन। And when you get the revelation of that, और जब आपको इसका प्रकाशन मिलता है, in other words, दूसरे शब्दों में, stand up, Job. उठ अय्यूब, खड़ा हो। Now try to find out who you are. अब ये कोशिश कर ढूंढने की तू है कौन, Where were you? तू कहां था। The question is you. सवाल है आप, Where were you आप कहां थे when I was laying the foundation of this earth? जब मैं इस पृथ्वी की नेव को रख रहा था। If you get a revelation of where you are, अगर आपको प्रकाशन मिले कि आप कहां थे, you will know where you will be. तो आपको प्रकाशन मिलेगा, पता लगेगा कि आप होंगे कहां पर। आमेन। It's all to make you understand, Job, who you are. ये सब तेरे को समझाने के लिए है अय्यूब कि तू कौन है। If you can see a law of resurrection in a tree, अगर तू पेड़ के अंदर एक पुनरुत्थान की व्यवस्था को देख पाता है, if you can see the law of resurrection in a river, अगर तू एक नदी के अंदर एक पुनरुत्थान की व्यवस्था को देख पाता if you है, can see the law of resurrection in a flower, अगर तू पुनरुत्थान की व्यवस्था को एक फूल में देख पाता है, if you can see it in a leaf, अगर तू इसको एक पत्ती में देख पाता है, sun going down, coming up, जो सूरज है नीचे जाता है और ऊपर आ जाता है, then I want इसको to tell you, Job, तो मैं तेरे को बताना चाहता हूँ अय्यूब, get this revelation. इस प्रकाशन को भी पाले Your change is in you. कि तेरा ही बदलाव तेरे अंदर पाया जाता है। It is in you, Job. ये तेरे अंदर है अय्यूब। That's when he said, तब ये तब था जब उसने कहा, all the years of my life, इन पूरी जिंदगी के दिनों में I will wait मैं इंतजार करूंगा till my change comes. आमेन, जब तक कि मेरा बदलाव ना आ जाए। I know I will be changed. मैं जानता हूँ कि मैं बदलूंगा। I know my Redeemer liveth. मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। I saw him in Revelations 5, मैंने उसे प्रकाश वाक्य 5 में देखा है, opening the book, पुस्तक को खोलते हुए। आमेन, आमेन, calling my name. मेरे नाम को पुकारते हुए। Elihu came to justify me. एलियू आया मुझे धर्मी ठहराने के लिए। Job comes to a revelation अय्यूब एक ऐसे प्रकाशन तक आता है of his genes. अपने जीवांशों के। And I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता that's the हूँ, oldest book in the Bible. ये सबसे पुरानी किताब है बाइबल की। And I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, last book in the Bible. आखिरी किताब बाइबल की You. आप। आमेन, Last chapters, last verses. आखिरी अध्याय, आखिरी आयतें। And the Spirit and the bride say, come. और दुल्हन और आत्मा कहते हैं आ। Spirit and the bride has become one. आत्मा और दुल्हन एक बन चुके हैं। She has become the anointed Christos. वो अभिषिक्त क्रिस्तोस बन चुकी है। She knows she's the Word. वो जानती है कि वो वचन है। She can place herself in the Word. वो अपने आप को वचन में स्थान दे सकती है। She can see her being unsealed वो अपने आप को खुलते हुए देख पाती है। in all the Bible characters, पूरे बाइबल के चरित्रों में, in the prophecies, भविष्यवाणियों में, in the promises. वायदों में। And when she can see herself और unsealed, जब वो अपने आप को खुलता हुआ देख पाती है, that is enough. ये काफी है। आमेन। Let me challenge you. आइए मैं आपको चुनौती दूं। I don't want to challenge the bride, मैं दुल्हन को चुनौती नहीं देना चाहता, but I want to challenge that unbelief पर मैं उस अविश्वास को चुनौती देना चाहता हूं। and say like this. और ऐसे कहना चाहूंगा, One day, एक दिन this knowing will be so strong. ये जानना इतना ज्यादा तीव्र हो जाएगा, This knowledge of yourself will be so strong ये जानकारी
आपके अपने आप की इतनी ज्यादा गहन हो जाएगी that you will just stand and say, कि आप ठीक खड़े होकर कहेंगे let there be a squirrel. ऐसा हो कि एक गिलहरी पैदा हो। Not just that, केवल यही नहीं, you are ready आप तैयार हैं to go back home. कि आप वापस घर जाएं। Amen. You'll not look for healing on the outside. आप बाहरी ओर से चंगाई की आस नहीं रखेंगे। You know healing is in the inside. आप जानेंगे कि जो चंगाई है वो अंदर पाई जाती है। The potentials are in you. वो क्षमताएं आपके अंदर पाई जाती हैं। Only the potentials needed an unsealing. केवल उन क्षमताओं को एक खुलासे की, उनकी मोहरों को तोड़ने की जरूरत है। One day when you realize, और एक दिन जब आप इस बात को समझेंगे I'm not the son of Charles and Ella Branham. कि मैं चार्ल्स और एला ब्रैनम का बेटा नहीं हूँ, I came from God मैं खुदा से आया हूँ and I'm going back to God. और मैं वापस खुदा के पास जा रहा हूँ। When that revelation becomes your absolute, जब ये प्रकाशन आपका परम सत्य बन जाता है, an unsealing has taken place, एक खुलासा घट चुका है, which is this age जो कि ये युग है for the Enoch group. उस हनोक वाले झुंड के लिए। Amen. Hallelujah. Sit down, please. बैठे कृपया। That means, इसका मतलब ये है, okay, you can have that. There is no expression without the unsealing of the genes. कोई प्रगटीकरण नहीं है बिना इन जीवांशों के खुलासे के। Now Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह the second Adam, दूसरे आदम rose on the third day. तीसरे दिन जी उठे। He had the rapture in him. उनके पास वो रैप्चर उनके अंदर था, The quickening power was in him. वो जिला देने वाली सामर्थ उनके अंदर थी। He was the quickening power. वो खुद जिला देने वाली सामर्थ He थे। was the seals. वो मोहरें थी। He was the complete expression of Godhead. वो संपूर्ण प्रगटीकरण थे खुदायत्व He was का। the rapture, resurrection, and life. वो रैप्चर पुनरुत्थान और जीवन थे। Didn't he say that in John 11? क्या ये बात उन्होंने यूहन्ना 11 में नहीं कही? Then if Adam, that is second Adam, had it, तो अगर आदम अर्थात दूसरे आदम के पास ये था, he said, I'm resurrection and life. उसने खुद कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। Rapture was, he was rapture. वो रैप्चर खुद थे। Amen. Now, अब start counting 7 generations from this Adam. अब इस आदम, Amen, इस आदम से 7 पीढ़ियां गिनने लग जाइए। Who said, I am rapture, जिसने बोला मैं रैप्चर हूँ, I am resurrection, I am life. मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ। In other words, दूसरे शब्दों में, it's in my genes. ये मेरे जीवांशों में पाया जाता है। Then those genes which were in Jesus needed a transfer. तो फिर वे जीवांश जो कि यीशु में थे, उनको जरूरत थी कि उनका भी स्थानांतरण हो। And to transfer it, और उनको स्थानांतरित करने के लिए he gave the key to Peter. उसने कुंजी जो दी वो पतरस को दी। To Amen. his bride. अपनी दुल्हन को दी। The one who had a revelation of who he is. Amen. उसको जिसके पास प्रकाशन था उसका कि वो कौन है। The keys of the kingdom. जो राज की कुंजियां हैं। What kind of key? किस किस्म की कुंजी? A key that would minister a birth. एक ऐसी कुंजी, Amen, जो कि एक नए जन्म को मुहैया करेगी। Bring another one in the family. एक और को लेके आएगी परिवार के अंदर। The Amen. family of Jehovah. यहोवा के परिवार के अंदर। And by virtue of that birth, और उस नए जन्म, उस जन्म के द्वारा, because he's born from the word, क्योंकि वो वचन के द्वारा पैदा हुआ है, because of that birth, उस पैदाइश के कारण से these genes ये जीवांश which are in Jesus जो कि यीशु में है, will be transferred ये स्थानांतरित होंगे in that child, उस बच्चे के अंदर। then हालेलुया। another child, और फिर एक और बच्चे में, then another और child, फिर एक और बच्चे में, then another और child. फिर एक और बच्चे में। Amen. हालेलुया। Paul was given the keys for the Gentiles पौलुस को वो कुंजियां सौंपी गई अन्य जातियों के लिए, to open that mystery. ताकि वो उस भेद को खोले। Then Irenaeus, फिर इरेनियस को, मार्टिन को, कोलंबा, को, लूथर को, but they could do only one thing, पर वो केवल एक चीज कर पाए to transfer the life, कि वो जीवन को ही स्थानांतरित कर पाए, but not bring an expression. पर एक प्रदर्शन नहीं ला पाए। Amen.
Amen. The whole wheat plant was a carrier of life, but not the expression of the life. पूरा गेहूं का पौधा केवल एक वाहक था उस जीवन का, पर प्रदर्शन नहीं था उस जीवन का. The Amen. expression came when the seed came. वो प्रदर्शन तब आया जब वो बीज निकल के आया. All the other stages, तमाम बाकी के चरण, स्थितियां, stalk, वो डंठल, the tassel, वो बाले, the husk, जो भूसी है, everything ये सब only transferred उन्होंने केवल स्थानांतरित किया the life. उस जीवन को. And that is what the 7 church ages are. और यही है वो 7 कलीसिया काल. They only acted as a carrier वो केवल एक वाहक के रूप में ही सामने आए to transfer the genes. ताकि उन जीवांशों को आगे लेके बढ़ाएं. But when the time comes for the gene to be expressed, पर जब समय आया कि वो जीवांश प्रकट किए जाए, the sun had to be in a particular stage. जरूरी था कि जो सूरज है वो एक खास स्थिति में हो. It had to be a harvest time. जरूरी था कि एक कटनी का समय हो. The sun had to be hot, जरूरी था कि जो सूरज की गर्मी है वो बहुत ज्यादा हो, that all the carriers die, जिसमें कि तमाम जो वाहक हैं जीवन को पहुंचाने वाले वो सब मर जाए, and only one thing remains. और केवल एक चीज बाकी रह जाए, That is the seed, जो कि है बीज, the final expression of the life. जो अंतिम प्रगटीकरण है, ज़हूरियत है उस जीवन की. And that seed और वो बीज just looks like that seed ठीक उस बीज के समान दिखता है which was sown in the ground. जो कि भूमि में बोया गया था. And when the cycle is completed, और जब चक्री पूरी हो गई, then you don't have a carrier. तब आपके पास कोई वाहक नहीं होता. This bride is not a carrier. ये दुल्हन कोई वाहक नहीं है. This bride is not a carrier. ये दुल्हन वाहक नहीं है. Let me repeat again. आइए मैं इसको दोहराऊंगा. This bride is not a carrier. ये दुल्हन वाहक नहीं है. She is the expression. ये दुल्हन प्रगटीकरण है. Amen. Hallelujah. This is not the age of Son of God. ये Amen. ये खुदा के बेटे का युग नहीं है. The Holy Ghost. पवित्र आत्मा, The life. वो जीवन, This is the age of Son of Man. ये मनुष्य के पुत्र का युग है. When the word became flesh. जब वचन देहधारी हुआ, When it came in expression. जब वो एक प्रगटीकरण में आया. The very word Son of Man means life has been expressed. Amen. जो ठीक मनुष्य के पुत्र शब्द का मतलब है वो ये है कि जीवन फिर से प्रदर्शित किया गया है. Logos became flesh. लोगोस देह में आया The है. life which was in the origin, वो जीवन जो कि मूल में था, that was in Genesis, जो कि उत्पत्ति में था, came in expression. वो एक अब ज़हूरियत में आया है. In 2 hands and 2 feet, 2 हाथों और 2 पैरों के साथ, walking on the face of this earth. जो कि इस पृथ्वी की सतह पे चलता है. That's when that life was called Son of Man. यही वो समय था जब उस जीवन को मनुष्य का पुत्र कहा गया. That's why the first corn of wheat इसलिए पहला गेहूं का दाना was Son of Man. वो मनुष्य का पुत्र था. But the tree पर जो पेड़ है was Son of God. खुदा का पुत्र था. But the seed again पर फिर से जो बीज आता है was Son of Man back again. वो फिर से मनुष्य का पुत्र वापस है. That Son of Man in the beginning तो मनुष्य का पुत्र आरंभ में and the Son of Man in the end. और मनुष्य का पुत्र आखिर में. Son of Man in the first coming. मनुष्य का पुत्र पहली आमद Son में. of Man in the second coming. मनुष्य का पुत्र दूसरी आमद में. What happened? क्या होता है? His genes. उसके जीवन God unsealed. उनका खुलासा हुआ है. God expressed वो प्रदर्शित हुए हैं. that one seed, वो एक बीज, his life, उसका जीवन, his genes उसका जीवन expressed प्रकट हुए in many more seeds. बहुतेरे और बीजों में. That is when the Greeks would see Jesus. यह वो समय होगा जब यूनानी यीशु को देखेंगे. That's when the Gentiles would see Jesus यह वो समय होगा जब अन्य जाति यीशु को देखेंगे in a many-membered body. एक बहुसंख्यित देह में. Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? And I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, that is why इसलिए when the genes were unsealed, जब ये जीवांश खुल रहे थे, when the original life was unsealed, जब मूल जीवन खोला गया, the husk could not stay. जो भूसी है वो झेल नहीं पाई. The rest of the plant had to die. पूरे बाकी के पौधे को मरना था. The Pentecostals had to die. पेंटिकोस्टों को मरना था. A dead man cannot understand seeds. एक मरा आदमी मोहरों को नहीं समझ सकता. It needs a quickening power. इसको जरूरत है एक जिला देने वाली सामर्थ की. It needs a very clear head, इसको बिल्कुल स्पष्ट समझ की जरूरत है, which is quickened by the Holy Ghost. जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा जागृत की जाती है. A quickened heart, एक जागृत हृदय चाहिए, a quickened soul. एक जागृत प्राण चाहिए Understand कि वो समझे the seeds. उन मोहरों को. Amen. Amen. For the rest, बाकियों के लिए it's in symbols. ये सब चिन्हों में होता है, But for the bride, पर दुल्हन के लिए it's an open book. ये खुली पुस्तक है.
Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? आमीन। I want to show you, brother. मैं आपको दिखाना चाहता हूं भाई, Every time the rapture took place, हर समय हर दफा जब ये रैप्चर घटा, there was an unsealing. एक खुलासा था। Without unsealing, बिना खुलासे के conditions are not met. जो परिस्थितियां हैं वो पूरी नहीं ठहरती, For the शर्तें rapture. पूरी नहीं ठहरती रैप्चर के लिए। That's why इसलिए in 63 the book was opened, जो 63 में पुस्तक खोली गई, but in 65 पर 65 में he explained it. उसने उन्हें समझाया। The open book खुली पुस्तक को was the Lamb's section ये मेमने वाला हिस्सा था। Amen। and the book of life, और जीवन की पुस्तक containing those names which were in tribulation. जिसमें वो नाम पाए जाते हैं जो कष्ट काल में होंगे, But the Lamb's section, पर मेमने वाला हिस्सा। Amen। catch the mystery. भेद को पकड़िए। The book had 2 sections. जो पुस्तक है उसके 2 हिस्से हैं। First 6 seals, पहली 6 मोहरे 1 section, एक हिस्सा, and the last seal, और आखिरी मोहर another section. एक और हिस्सा, Grace. अनुग्रह। Catch the mystery. भेद को पकड़िए। What is the first seal? पहली मोहर क्या है? White horse rider, सफेद घुड़सवार, Nicolaitans, निकुलीवाद, man under man. आदमी आदमी के ऊपर। Church is brought under subjection of human leadership. कलीसिया मातती में लाई जाती है इंसानी नेतृत्व के नीचे। That is what happened in Eden. यही चीज घटी थी अदन में। The headship of the word was taken away from Eve. जो वचन की मातती थी, जो वचन की हुकूमत थी, वो हव्वा के ऊपर से हटा दी गई थी। And she came under the leadership of serpent. और वो सर्प की अगुवाई के नीचे आ गई थी। And what was born? और क्या पैदा हुआ? Cain. कैन पैदा हुआ। So Cain was a product of a Nicolaitan doctrine, तो कैन जो है वो एक उत्पाद था निकुली शिक्षा का, which is the white horse rider. जो कि श्वेत घुड़सवार है। And when Cain was born, और जब कैन पैदा हुआ, what is the next thing he done? अगली चीज उसने क्या करी? Killed Abel, उसने हाबिल को मारा। the red horse rider, लाल घुड़सवार which killed the Christians. जिसने मसीहों को मारा है। Then came Cain's genealogy. फिर आई कैन की वंशावली। They didn't know God. वो खुदा को जानते ना थे। Then came Sheth, फिर आया शेत, Enosh. इनोश। Then man began to call on the name of the Lord. तब इंसान ने, आदमी ने खुदा के नाम को पुकारना चालू किया। All these years, इन तमाम वर्षों में they didn't know it. वो नहीं जानते थे। Dark ages, अंधकार के युग, black horse. काला घोड़ा। But in the time of Noah, पर नूह के समय में all came together. ये सब एक साथ आए। Sons of God saw daughters of men. खुदा के बेटों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। And came the pale horse, और फिर आया पीला घोड़ा, death. मौत। And then came the flood, और फिर आई वो बाढ़ which destroyed them all. जिसने उन सबको बर्बाद कर दिया। All who were born in that line वे सब जो उस रेखा में पैदा हुए, ended up in the 6th seal, वापस उनका अंजाम छठी मोहर में हुआ, under the judgments of God. उन खुदा के तमाम न्यायों के नीचे। But while the 6th seal was getting ready to be opened, और जबकि परंतु जब वो छठी मोहर तैयार हो रही थी कि वो खोली जाए, in tribulation form, एक कष्टकाल के रूप में, before it could be opened in tribulation form, इससे पहले वो कष्टकाल के रूप में खोली जाए, when the rains literally came, जब वो बारिश वास्तविकता में गिरी, it was opened in spiritual form. ये खोली हेमन गई एक आत्मिक रूप में। Investigation judgment. जांच पड़ताल वाला न्याय। God saw man खुदा ने मनुष्य को देखा and saw that what he has done is not right. और देखा कि जो कुछ वो करता है निरंतर बुरा ही होता है। Investigation judgment. जांच पड़तालीय न्याय। In that period of investigation judgment, उस समय में जो कि जांच पड़तालीय न्याय का था, while the 6th seal was opened जब छठी मोहर खोल दी गई थी and the investigation had begun, और जांच पड़ताल चालू हो चुकी थी, UFOs were visiting जो यूएफओ थे वो मिलने आ रहे थे and seeing the earth. और पृथ्वी को देख रहे थे। Spiritual mind will catch what I'm saying. आत्मिक मन पकड़ेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। At the same time, ठीक उसी समय में he opened the 7th seal उसने 7वीं मोहर को खोल दिया for the elect, चुने हुए के लिए। आमेन। showed him the meaning of his name. उसे उसके नाम का मतलब दिखा दिया। Your name is rest, तेरा नाम विश्राम है। and you will bring a rest. और तू एक विश्राम को लेके आएगा। Rest from the sins of the world. पृथ्वी के गुनाहों से एक विश्राम लेके आएगा। You are a mystery of Christ. तू मसीह का एक भेद है। And when Noah got unsealed, और जब नूह का खुलासा हुआ, he knew his ministry वो अपनी सेवकाई को जान गया and he built the ark, और उसने उस कश्ती को बनाया, preached the end time message. अंत समय के संदेश का प्रचार किया। But in the end,
पर आखिर में under the seventh seal, 7वीं मोहर के नीचे the Lord himself came down प्रभु खुद नीचे उतर के आ गए in the ark कश्ती में and said, Noah, और कहा हे नूह you and your family तू और तेरा खानदान come in the ark. इस कश्ती में आ जा। Some people pulled out of 6 seals. कुछ लोग छठी 6 मोहरों में से बाहर निकाल लिए गए खींच के। There's a cycle of first 6 seals. एक चक्र है पहली 6 मोहरों का, There's a cycle of first 6 seals एक चक्र है पहली 6 मोहरों का where people die. जहां पर लोग मरते हैं। But Noah and his people पर नूह और उसके लोग were pulled out of that cycle वो उस चक्री में से बाहर खींच लिए गए and put under another seal. और एक और मोहर के नीचे डाल दिए गए। What was the ark covered by? ये जो कश्ती है किसके द्वारा ये ढाकी गई थी? The pitch, उस राल के द्वारा, the blood of Jesus Christ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, by Christ, मसीह के द्वारा। so that their lives were in Christ. तो वो जो जीवन थे वो मसीह के अंदर थे। If you can look from outside, अगर आप बाहर से देखें you can't see Noah, आप नूह को नहीं देख you can't see पाएंगे, his family, आप उसके परिवार को नहीं देख you can see पाएंगे, the pitch आप केवल राल को देखेंगे on the wood. उस लकड़ी के ऊपर। They were in the kafar. वो कफार के अंदर थे। Amen. What did God do? खुदा ने क्या किया? Transferred some names in the lamb section. कुछ नामों को स्थानांतरित किया मेमने वाले हिस्से में। Now somebody will say, but हम भी था. Now see, I'm just showing you shadows. Shadow में हर चीज नहीं मिलेगी. वो shadow थी, ये reality है. अब किसी का सवाल है, लेकिन हम भी तो था उसमें. अब हम का सवाल यहाँ मत करिए. हम को यहाँ मत लाइए, क्योंकि मैं खाली एक shadow आपको दिखा रहा हूँ. Shadows में नबी ने कहा ऊपरी चीजें एक रूपरेखा मिलती है, माइनर डिटेल्स नहीं मिलेंगी. तो इसलिए आप रूपरेखा समझें जो आज पूरी होनी है. आमीन, Amen. So what did God do? तो फिर खुदा ने क्या किया? Pulled out Noah and his family. नूह और उसके परिवार को खींच के बाहर निकाला। Where did he pull them? उन्हें उसने कहाँ खींचा? In the another section, एक और हिस्से में, the lamb section. मेमने वाले हिस्से में। The seventh seal pulled them in the lamb section. 7वीं मोहर ने उन्हें खींच के मेमने वाले हिस्से में लेके आ गया। The cloud pulled them. बादल ने उन्हें खींच लिया। Amen. Amen. Their lives were hid in Christ. उनके जीवन मसीह में छुपा दिए गए। What was that ark? वो कश्ती क्या थी? Christ. मसीह। And what happened to their lives? और उनके जीवनों को क्या हुआ? Their lives were hid in Christ. उनके जीवन मसीह में छुपा दिए गए। And when Christ was opened और जब मसीह खोला गया after 1 year, 1 साल के बाद they were in a new land. वो एक नई देश में, नई भूमि में थे। Oh, hallelujah. हालेलुया। Can you catch the mystery? क्या भेद पकड़ पाते हैं? This is happening in this hour. ये इस घड़ी में घट रहा है। So when the unsealing took place, तो जब खुलासा घटा, it was revealed ये प्रकट हुआ whose names are in the lamb section. किनके नाम वो मेमने वाले हिस्से में पाए जाते हैं। इसका मतलब मैं ये प्लीज मैं कैसे समझाऊं, बिकॉज अलग अलग तस्वीरें हैं. मैंने अब आपको एक तस्वीर दिखाई, 6 मोहरें अलग, 7वीं मोहर अलग, लेकिन ये एक तस्वीर है बुक ऑफ लाइफ और लैम्स बुक ऑफ लाइफ की. अगर एक दूसरी तस्वीर में देखें तो किसी भी मोहर में उठा के देख लें तो नाम छिपे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप समझ रहे हैं? सो योर नेम्स आर हिड इन द बुक. तो आपके नाम पुस्तक में छिपे हैं। सो व्हेन द प्रॉफिट प्रीच्ड द सील्स, तो जब नबी ने मोहरों का प्रचार किया, he literally spoke you the bride into existence. उसने वास्तविकता में आपको जो कि दुल्हन है वजूद में बोल दिया. Your genes were spoken out. आपके जीवांश बोल दिए गए. And when your genes were spoken out, और जब आपके जीवांश बोल दिए गए, your attribute rejoiced. आपके गुणों ने आनंद किया. You don't know about that. आप इसके बारे में नहीं जानते. You are a part of that meeting. आप उस मीटिंग के हिस्से थे. But that realization पर ये समझ is coming now. अब आ रहा है. Amen. In your life. आपके जीवन में. Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? An unsealing. एक खुलासा. And then a rapture. और फिर एक रैप्चर. Sit down, please. बैठे कृपया. Adam had the genes. आदम के पास वो जीवांश थे. And they went to Enoch. और वो हनोक के पास चले गए. Second Adam had the genes. दूसरे आदम के पास भी जीवांश थे. And it went to the 7th generation. और वो 7वीं पीढ़ी तक चले गए. First Adam fellowshipped with his 7 generations. पहले आदम ने अपनी 7 पीढ़ियों के साथ संगति रखी. And the last generation he fellowship with, और आखिरी पीढ़ी जिसके साथ उसकी संगति हुई, Enoch, वो हनोक था. he got raptured. वो रैप्चर जिसका हो गया. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं?
In the same way, ठीक उसी रीति से second Adam fellowship with 7 generations. दूसरे आदम की भी मुलाकात 7 पीढ़ियों के साथ हुई। Every age the Holy Ghost came, हर एक युग में वो पवित्र आत्मा आया, but in the last age, पर आखिरी युग में it changed from Son of God to Son of Man. ये खुदा के पुत्र से बदल के मनुष्य के पुत्र में आ गया। And it changed from, now this is a huge subject, Son of God, Son of Man, Son of David. I mean, in fact, ये सच बात है, इसका प्रचार होना चाहिए, because there are many new people who don't understand that. Maybe sometime I will. ये बहुत बड़ा विषय है, कभी मैं प्रचार करूंगा इस पे, But it is to be understood पर जरूरी है कि ये समझा जाए that in the last age, कि अंत के युग में when the wheat came, जब बीज आया, गेहूं आया, like the original wheat. ठीक उस मूल गेहूं के समान। What was the original wheat? ये मूल गेहूं क्या था? Word made flesh, वचन देहधारी हुआ वा, Son of Man. मनुष्य का पुत्र। Then what came in the church ages? तो फिर कलीसिया कालों में क्या आया? The whole plant, पूरा पौधा, only a carrier, केवल एक वाहक था carrying the life. जो कि जीवन को लेके चल रहा था। The message of the age was accounted as the Holy Ghost of that age. जो उस युग का संदेश था, वो पवित्र आत्मा उस युग के लिए गिना गया। That was just a carrier केवल वो एक वाहक था for 7 church ages. उन 7 कलीसिया कालों के But in लिए। the last age, पर आखिरी युग में, after the Pentecostal age, इस पेंटिकॉस्टल युग के बाद, that wheat came back to wheat, जो बीज है, जो गेहूं है, वो वापस गेहूं तक आ गया, like the original seed. ठीक उस मूल बीज के समान। And if the original seed was Son of Man, और अगर वो मूल बीज मनुष्य का पुत्र था, what is this seed? तो फिर ये बीज क्या होगा? Son of Man. मनुष्य का पुत्र, Son of Man in the last days. मनुष्य का पुत्र अंत के दिनों में, Son of Man in the harvest time. मनुष्य का पुत्र कटनी के समय में। Can you see it? क्या आप इसे देख पाते हैं? Amen। Those genes got unlocked today. वे जीवांश जो हैं आज खोल दिए गए। And the minute the seed came, और जिस क्षण वो बीज आया, the minute the expression came, जिस क्षण वो प्रकटीकरण आया, the farmer comes जो किसान है वो आता है and reaps it और उसे काट लेता है and separates it from the shuck. और उसे भूसी से अलहदा कर देता है। When you will become the expression, जब आप वो प्रकटीकरण बन जाते हैं, you will be separated from the carriers. आप उन वाहकों से अलहदा कर दिए जाएंगे। चाहे या ना चाहे. Amen। The reapers are the angels. Amen। जो काटने वाले हैं वो दूत हैं। And it is the ministry of these angels to separate the seed from the shuck. और ये इन दूतों की सेवकाई है कि उस भूसी को बीज से अलग करें। And if you are that seed, और अगर आप वो बीज हैं, and you understood yourself as the expression of Christ today, और अगर आपने समझा है अपने आप को कि आप मसीह का आज प्रकटीकरण हैं, then you have to be separated from the shuck. तो आपको जरूरी है कि आप भूसी से अलहदा हो। You can't stay with the shuck. आप भूसी के साथ बने नहीं रह सकते। Shuck cannot cling to you. जो भूसी आपसे चिपकी रह नहीं सकती। If it does, अगर ऐसा है, angels will separate. तो दूत उसे अलग कर देंगे। Even in your own life, यहाँ तक कि आप अपने जीवन में, your old life आपका पुराना जीवन is the shuck भूसी है, carrying the seed inside. जिसके अंदर वो उस बीज को लेके चलता है। And what will the angels do? और दूत क्या करेंगे? Separate this from that. इसको उससे अलग कर देंगे। One day you can literally feel another you walking in the old you. Amen। एक दिन आप वास्तविकता में महसूस कर पाएंगे एक और आप आपके अंदर चलता हुआ है। Very clearly, ठीक साफ साफ रीति से, very clearly you will be able to distinguish two voices. आप उन दो आवाजों में भेद कर पाएंगे। One your natural voice, एक आपकी स्वाभाविक आवाज, one your spiritual man, आपके एक आत्मिक मनुष्य। your gene crying Abba, Amen। आपका जीवन चिल्लाता हुए अब्बा, your gene crying Father, आपका जीवन चिल्लाता हुआ हे पिता, my Lord, my husband. मेरे प्रभु, मेरे पति। Amen। हिंदी में बोलूं समझ में आएगा? Amen। आप सड़क पे चल रहे हैं, आप जा रहे हैं, अरे भाई क्या टाइम हुआ? 9 बजे हैं, ये आप बोल रहे हैं 9 बजे हैं। समझ में आ रही है आपके? ये है आपकी आवाज जो आप रोजमर्रा बोलते हैं सुबह से शाम तक। इतनी ही स्पष्ट एक और आवाज आप ही के अंदर है, और वो एक फर्क आवाज है जो आप सुनेंगे और आपको ये मालूम है कि ये दूसरे आप हैं, बिल्कुल स्पष्ट, जो प्रार्थना कर रही होगी, जो यीशु मसीह से बात कर रही होगी। और उस आवाज
और 9 बजे हैं में बहुत फर्क है. Then you will know तब आप जानेंगे there's another you, कि आपके अंदर एक और है, another Job, एक और अय्यूब है which got resurrected in you. जो कि आपके अंदर पुनरुत्थानित हुआ है. This message quickened it, इस संदेश ने उसे जागृत किया है, made it alive. उसे एक जीवन दिया, जीवित किया है. And then when you pray in the spirit, और तब जबकि आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तो ये आवाज 9 बजे हैं दुआ नहीं करती, वो अंदर की आवाज दुआ करती है. आमेन. It's another voice praying. ये एक और आवाज है जो प्रार्थना करती है. It's very, very clear. ये बहुत ज्यादा साफ साफ है. And it becomes so clear. और ये इतना ज्यादा स्पष्ट हो जाती है. You can't hear your voice. आप अपनी आवाज खुद नहीं सुन पाते. You only hear that voice. आप केवल उस आवाज को सुनते हैं. What is that voice? वो आवाज क्या है? Your gene, आपकी जीवांश, which got unsealed. जो कि जिसकी मोहरें खोली गई. You have come to a revelation आप एक प्रकाशन तक आप पहुंचे of हैं who you are. कि आप कौन हैं. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? देखिए मीटिंग में आते हैं तो उसका कुछ लाभ भी उठाएं. आमेन. हालेलुया. इसका जवाब ये नहीं है कि मीटिंग सुनी, घर गए और सो गए. Go down and pray. वापस घर जाके प्रार्थना करिए. Meditate on what has been said. उन सब चीजों पे मनन करिए जो कुछ कहा गया है. And then God will open more. और फिर खुदावन और ज्यादा अधिकाई से खोलेंगे. Adam had the genes. आदम के अंदर जीवांश थे. Second Adam had the genes. दूसरे आदम में भी जीवांश थे. In the first Adam, the genes got transferred from Adam to Enoch. पहले आदम में जो जीवान से वो आदम से हनोक तक के स्थानांतरित हुए. And the first 6 generations, और पहली 6 पीढ़ियों में they were sealed. वो मोहर बंधित थे. But in Enoch, पर हनोक में they got unsealed. वो उनकी मोहरें तोड़ दी गईं. The rest were carriers. बाकी तो केवल वाहक थे, That's why they died. इसलिए वो मर गए. But Enoch cannot die. पर हनोक नहीं मर सकता. He's not a carrier. वो कोई कैरियर नहीं है. He's the expression of the original life. वो मूल जीवन का प्रगटीकरण है. That's why this bride will not die. इसलिए दुल्हन नहीं मरेगी. Because she's not a carrier. क्योंकि ये एक वाहक नहीं है. Amen. Catch the mystery, please. भेद को पकड़िए कृपया. We have come back to the original seed. हम वापस आए हैं. आप वापस आए हैं उस मूल बीज तक. It's not water ये पानी नहीं or है, blood या लहू, or spirit. या आत्मा. The head has come सर आ चुका है and the body has come. और शरीर बाहर आ चुका है. The word has become flesh. वचन देहधारी हो चुका We है. can see the head हम सिर को देख पाते and we हैं can see the body. और हम देह को देख पाते हैं. The Son of Man on the earth again. मनुष्य का पुत्र फिर से इस पृथ्वी पर. 1 foot on land and 1 on sea. एक पैर पृथ्वी पे और एक पैर समुंदर पे. Amen. Please catch the mystery. भेद को पकड़िए. And that is why और इसलिए it needed those genes to be transferred. जरूरी था कि ये जीवान स्थानांतरित किए जाएं. That's why when you start in Hebrews 11, इसलिए जब आप शुरू करते हैं इब्रानियों 11 में, it doesn't start with Adam. ये आदम से शुरू नहीं करता, It starts with Abel. ये हाबिल से शुरू करता है. Because Abel brought the revelation of the blood. क्योंकि हाबिल उस लहू के प्रकाशन को लेके आया. The first one, the first expression of the mystery. पहला शख्स जो कि पहला प्रगटीकरण था उस भेद का. But not complete. पर संपूर्ण रीति से नहीं. But you had to start from there. पर जरूरी था कि हम वहां से शुरू करें. Fellowship began there. वहां पर तो संगति शुरू हुई Under the blood. लहू के नीचे. It did not finish. वहां पर वो खत्म नहीं हुई. It began under the blood. वहां पर वो शुरू होती है लहू के अंदर. But it finished in Enoch पर ये हनोक में पूरी हुई and brought a rapture. और एक रैप्चर को लेके आई. Enoch walked with God हनोक खुदा के साथ चला under the blood, लहू के नीचे. communing with the blood. वचन लहू के साथ संगति सहभागिता करता हुआ. And the blood talked with him. और लहू ने उससे बात करी. Not from the outside, बाहर से नहीं, from inside. पर उसके अंदर से. And when the mysteries were revealed, और जब भेद खोल दिए गए, he was quickened वो जागरूक हो गया and he was raptured. और उसका रैप्चर हो गया. Is this much clear? क्या इतना स्पष्ट है? Amen. We know Abraham is called a patriarch. हम जानते हैं इब्राहिम को पिता कहा जाता है. Why? क्यों? What do you mean by the word patriarch? आप
ये पितृ शब्द से क्या समझते हैं? मूल पिता. मूल. Amen. Why is that word patriarch used? ये शब्द मूल पिता क्यों इस्तेमाल किया जाता है? He carried the genes of the family. वो परिवार के जीवांशों को लेके चल रहा था. All the genes of the seed of Abraham were in Abraham. तमाम जो जीवांश उन अब्राहम के वंश के थे वो सब अब्राहम में थे. Is that right? क्या बात ठीक है? When Melchizedek the high priest came, जब मल्कीसेदेक वो महायाजक आया, King Theophany, Logos, राजा थियोफनी लोगोस, I'll say 7 spirits came to Abraham. मैं कहूंगा 7 आत्माएं अब्राहम के पास आईं. As a mighty angel came to Abraham. Amen. मैं कहूंगा बलि स्वरदूत अब्राहम के पास आया. And today he came to Branham. और आज वो ब्रैनम के पास आया. Levi paid tithes in Abraham. लेवी ने दसवांश दिया अब्राहम में To Melchizedek. मल्कीसेदेक को. Then the bride, तो फिर दुल्हन, the royal priesthood, वो राजसीय याजक पत्ती, was in the loins, spiritual loins of Branham. वो आत्मिक सुल्फों में थी ब्रहनम के. When he was caught in the cloud. जब वो बादल में उठाया गया. Amen. She already has done something in Branham, उसने पहले से कुछ कर लिया है ब्रहनम के अंदर, which she will do now. जो कि वो अब करेगी. Amen. Why? क्यों? By virtue of the transfer of the genes. उस जीवांशों के स्थानांतरण के माध्यम से. Genetic transfer is only based on birth. ये जो जीवांशिक स्थानांतरण है केवल पैदाइश पे आधारित है. That is why इसलिए you cannot preach rapture आप रैप्चर का प्रचार नहीं कर सकते. till you preach birth first. Amen. जब तक कि आप पैदाइश का प्रचार ना करें पहले. Because क्योंकि rapture is inherited. क्योंकि रैप्चर मिरास में प्राप्त किया जाता है. Amen. That's the mystery. Rapture is an inheritance. रैप्चर एक मिरास है. You inherit it from someone. आप उसको किसी से प्राप्त करते हैं. And the one who had the rapture in him was God himself. और वो जिसके अंदर रैप्चर था वो खुदा खुद था. What did our Lord Jesus say? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? I am resurrection and life. मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ. Then it can only be transferred. ले निकाल के अपना एक गोश्त का टुकड़ा काटा, तुम में चिपका दिया, लो रैप्चर आ गया. ऐसे रैप्चर नहीं चिपकता. रैप्चर के लिए पैदा हो. तुम्हें मेहनत नहीं करनी रैप्चर काट काट के चिपकाने की. जैसे नोट्स बना के ना चिपका देते हैं. ऑफिस में देखें कई लाल पीले नीले रंग बिरंगे चिप्पे लगे रहते हैं डेस्क के ऊपर. तो ऐसे रैप्चर आपके ऊपर नहीं चिपकाया जाता. जी नहीं, ये रैप्चर चिपकाने वाली चीज नहीं है. ऊपर से रैप्चर पैदाइश से अपने आप अंदर से बढ़ के आती है. रैप्चर इज इनहेरिटेड. रैप्चर मिरास में प्राप्त होता है. इनोक इनहेरिटेड इट. हनोक ने उसको मिरास में प्राप्त किया. द ब्राइड इनहेरिट्स इट. दुल्हन इसे मिरास में प्राप्त करती है. You see, we have two relations. आप जानते हैं हमारे पास 2 संबंध हैं. As a son, एक पुत्र के रूप में, as a bride. और एक दुल्हन के रूप में. And both relations are very personal. और दोनों ही संबंध बहुत व्यक्तिगत हैं. It are related to the blood. ये लहू से संबंधित होते हैं. As the son, एक पुत्र के रूप में you are directly from his blood. आप ठीक उसके लहू से आ रहे हैं. As the bride, दुल्हन के रूप में you are his flesh and his bones. आप उसकी हड्डियां और आप उसके मांस हैं. Amen. Amen. Hallelujah. What is bread and wine? लहू और दाखरस, रोटी और दाखरस क्या है? The two relations. ये 2 संबंध है. Amen. Bride and the son. दुल्हन और पुत्र. The two sticks. ये 2 लकड़ियां Made one under the 7th seal. एक होती हैं उस 7वीं मोहर के नीचे. In this last age. इस अंत के युग में. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? That is why इसलिए the blood of Jesus speaks better things. जो यीशु का लहू है बेहतर बातें बोलता है. And you can't speak what Jesus said until Jesus is in you. और आप वो नहीं बोल सकते जो यीशु बोलता है जब तक यीशु आपके अंदर खुद ना हो. For that, उसके लिए you have to have a birth. आपका एक जन्म होना जरूरी है. बिना पैदाइश के
बिना पैदाइश के रैप्चर का रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं, Amen. है ही नहीं, अगला पन्ना खुलेगा ही नहीं। हमारी है, अगला पन्ना अपलोड ही नहीं होगा। 35 साल हो गए, अगला पन्ना कईयों का अपलोड ही नहीं हुआ। क्यों? पहला पन्ना ही ठीक नहीं भरा, वहां गड़बड़ी है। हिंदी में बोल रहा हूं, सब चुप हो गए। नया जन्म पाइए, तुरंत अगला पन्ना खुलेगा, फिर अगला पन्ना खुलेगा, फिर अगला पन्ना खुलेगा। और जब सारे पन्ने खुल जाएंगे तो रैप्चर का बटन दबेगा, और जब बटेगा दबेगा तो यहां से गायब होगे और वहां से निकलोगे, प्रिंट हो जाओगे। बहुत आसान बात है, आप ही की भाषा में समझा रहा हूं, समझ रही है। एक दिन रैप्चर में प्रिंट हो जाओगे कहीं, लेकिन उससे पहले जरूरत है कि फॉर्म तो अपलोड हो। अच्छा, कहा था कि सही तस्वीर लगाना, तस्वीर ही लगाई बेकार। हमारी है, उस पे लिखा रहता है आज की प्रेजेंट तस्वीर लगाना, 10 साल पुरानी खींची तस्वीर लगेगी नहीं। मैं लूथर के समय कैसी दिखती थी, मैं वेस्ली के समय कैसा दिखता था, उसकी तस्वीरें कहां से चिपकाओगे? वो तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तस्वीर लगानी है तो आज की, आज कैसे दिखते हो वो चिपकाओ नहीं, और एक्सपेक्ट करो कि फॉर्म एक्सेप्ट। कहां से फॉर्म एक्सेप्ट होगा? कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कुछ नहीं, वो भरेगा ही नहीं, वो आ जाएगा भाई रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। क्यों हो रहा है भाई? बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, होता क्या है, मीटिंग में कई लोग बैठते हैं, कईयों के अगले पन्ने खुल चुके हैं, क्योंकि पहला पन्ना सही है तो इसलिए अगले पन्ने समझ में आ रहे हैं। जिसका पहला पन्ना ही नहीं खुला, उसके लिए अगला पन्ना क्या खुलेगा? इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको कंडेम करने आया हूं, मैं आपको एक सलाह देने आया हूं। इंश्योर कर लें कि तुम्हारा पहला पन्ना सही है, यानी नया जन्म प्राप्त कर। लेकिन एक चीज बताओ, हर मीटिंग में आके आपको ये बोलता रहूं नया जन्म लो, कब तक? कोई तो दिन होगा जब ले लोगे, या मैं आपको रोज कहता ही रहूं और आप रोज सुनते ही रहो? आप हैं मेरे साथ? जैसे ही होली गोस्ट अंदर आ जाएगा, ये मैसेज भेद नहीं रहता, 2 और 2 4 यूं समझ में आता है। एक लड़के ने अपना नाम विक्की हटा दिया और बो नरगिस लगा दिया। क्यों कर रहा है ये? क्यों कर रहा है? ये सब करने में रीजन क्या है? उसे कुछ दिख रहा है, उसे कुछ रेवलेशन मिला, उसने कहा विक्की नाम अच्छा तो रख लो बच्चे का नाम विक्की। नहीं, अब उसे कुछ भेद समझ में आया। ऐसे भी एक नाम रखा रजियल, एंजल ऑफ मिस्ट्री। क्यों रखे जा रहे हैं सारे नाम? कुछ चीज समझ में आई। ऐसी आनंद फावनी तेरा नाम रख देते, चल तेरा नाम पवन है कल से, पवन मुकेश हितेश। समझ मारी आपके? ये पवन मुकेश हितेश रमेश फमेश कर सब रुक गया। समझ मारी है? एक नया नाम है, उसका भेद खुला है। जो मेमने के वाले सेक्शन, मेमने वाले सेक्शन में मुकेश हितेश रमेश भुकेश हितेश नहीं है, वहां नाम कुछ और है। आपकी समझ में आ रही है? ये चीज है, इसकी अनसीलिंग चाहिए। जब ये अनसील हो, जब ये मोहर टूटे, अब नबी प्रचार करेगा रैप्चर। अनसीलिंग देन द रैप्चर। पहले खुलासा फिर रैप्चर। अब्राहम, in him was Levi, उसके अंदर लेवी था। and when he paid the tithes to Melchizedek, और जब उसने 10वां अंश दिया मलकीसदेक को, Paul is seeing the genes of Levi in Abraham. पौलुस अब्राहम के अंदर लेवी के जीवांशों को देख रहा है। Levi paying tithes in gene form in Abraham. Amen. लेवी
दसवांश को दे रहा है जीवांश के रूप के अंदर अब्राहम में। Now, where were your genes? अब आपके जीवांश कहाँ थे? In Christ Jesus. मसीह यीशु में। Then every action he did on this earth, तो हर एक काम जो उसने इस पृथ्वी में किया, in genetic form, you have done it. एक जीवांशिक रूप में आपने कर लिया है। You have raised the dead. आपने मुर्दे को जिलाया है। Amen. You have healed the sick. आपने बीमारों को चंगा किया है। You have said, आपने कहा है, I have power to lay my life down. मेरे पास अपना जीवन देने का अधिकार है। Now that is not skim milk. अब ये पतला दूध नहीं है। And I have power to take it back again. और मेरे पास सामर्थ्य है कि मैं उसे वापस ले लूं। Destroy this temple. इस मंदिर को ढा दो। And I'll raise it up in 3 days. और मैं इसको 3 दिन में वापस खड़ा हो I will जाऊंगा। do it. I. मैं करूंगा। Not third person. तीसरा शख्स नहीं, The very person of God. वो वास्तविक खुदा का शख्स। Amen. Then what about the bride today? तो फिर उस दुल्हन के बारे में क्या What आज? did Job say? अय्यूब ने क्या Though कहा? the skin worms destroy this flesh, चाहे ये इस शरीर को, इस खाल को कीड़े खा जाएं, yet in this same body तो भी इसी शरीर में I shall stand मैं खड़ा होऊंगा and behold my Redeemer. और अपने सिर, अपने छुड़ाने वाले को देखूंगा। My revelation brings me there, मेरा प्रकाशन मेरे को वहां उठा के लाता है। Amen. and I am there. और मैं वहां पर हूं। That is what's happening in this hour. यही चीज घट रही है इस घड़ी में। And unsealing एक खुलासा and showing your real you. और आपको दिखाना आप वास्तविकता में हैं कौन। आपके वास्तविक में चश्मा नहीं है, Amen. सफेद बाल नहीं है, Yes. झुर्रियां नहीं है, Yes. Amen. निकलता हुआ पेट नहीं है, पतली छाती नहीं है। मैं आदमियों से बात कर रहा हूं, Amen. समझ मारी आपके? छाती हो रही है कैरम बोर्ड, नहीं, उस जिस्म में नहीं है ये। Amen. समझ मारी आपके? ऐसी बहनें बुजुर्ग होती जा रही हैं, बाल सफेद होते जा रहे हैं, चश्मा लग गया, झुर्रियां पड़ गई, झुक झुक के चलना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, ये सब उस रियल यू में नहीं है। Amen. Now when you get the revelation of real you, अब जब आपको प्रकाशन मिलता है आपके असली आपका, Brother Branham, you know what he said? आप जानते भाई ब्रह्म ने क्या कहा? Just see that केवल उसको देखिए and walk into it. और उसमें कदम मारते हुए चलते बढ़ते आगे चले जाइए। Amen. You walk in your body. आप अपनी देह में चलिए। We walk by faith हम विश्वास के द्वारा चलते हैं and not by sight. और देखने के द्वारा नहीं। Amen. Catch the mystery. भेद को पकड़िए। Levi paid tithes in Abraham. लेवी ने दसवांश दिया अब्राहम में, Then we did something in Branham. तो फिर हमने कुछ किया ब्रैनम में। When he was caught in that constellation, जब वो झुरमुट में उठा लिया गया, then we were caught in that constellation. तो फिर हम भी उस झुरमुट में उठा लिए गए, Potentially. संभावित रूप में And now in reality. और अब असलियत में। Amen. Amen. Then when Branham spoke squirrels, तो फिर जब ब्रैनम ने उन गिलहरियों को बोला, Amen. and your spiritual genes were in him, और आपके आत्मिक जीवांश उसके अंदर थे, then you have those potentials. तो फिर आपके अंदर भी वो क्षमताएं हैं। If you can have that mystery, अगर आप उस भेद को पकड़ पाए, then let me tell you, तो मैं आपको बताना it चाहूंगा, only needed an unsealing. इसको केवल एक खुलासे की जरूरत थी। And when it gets open, और जब ये खुल जाता है, you walk in a different world. आप एक दूसरे फर्क संसार में चलते हैं। अब आप ये नहीं कहते मेरा नाम तेजपाल है, आई पीछे खड़े हैं, गॉड ब्लेस हिम, एग्जाम्पल लेके कह रहा हूं। अब आप ये नहीं कहते खाली कि मेरा नाम तेजपाल है, ये तो पुराने माँ बाप ने रख दिया। अब आपका नाम कुछ और है। Amen. तेज तो है ही है, लेकिन कुछ और है, Amen. कुछ ऐसा जो पुस्तक में है। Now let me tell you, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, once the genes are put on, एक बारी जब ये जीवांश चालू कर दिए जाते हैं, it cannot be shut, ये बंद नहीं किए जा सकते, because the process will not finish till the product is achieved. Amen. क्योंकि वो क्रिया
कभी भी खत्म नहीं होगी जब तक के जो निश्चित पदार्थ प्राप्त करना है वो ना मिल जाए। And that process today is the rapture. और वो क्रिया आज रैप्चर है। Once it has been switched on एक बार जब ये चालू कर दिया गया है by the mighty angel, उस बलि स्वर्गदूत के द्वारा, once he has pressed the button, एक बार उसने जब बटन दबा दिया है, once he has uttered the seven thunders, एक बार जब उसने 7 गर्जन के शब्दों को बोल दिया है, nothing can stop this process कोई भी इस क्रिया को नहीं रोक सकता until the product is achieved जब तक कि वो प्रोडक्ट ना प्राप्त हो जाए and you discover yourself one day in a new body. और आप अपने आप को पाए एक नई देह के अंदर एक दिन। बहुत ही जल्दी और कईयों के साथ होना शुरू भी हो चुका है। आपको एक चीज पता लगेगी, आप चलना नहीं चाह रहे लेकिन एक धक्का पड़ रहा है बाहर। ये कौन सी शक्ति है जो बढ़ा रही है, जो मुड़ा रही है, जो चलवा रही है, जो सुचवा रही है, जो बुलवा रही है, जो दुआ करवा रही है? ये आप नहीं है, ये आप नहीं है, ये आप नहीं है, ये आप नहीं है, ये कोई और है जिसने प्रोसेस ऑन कर दिया। After 5 p.m. 5 बजे के बाद शाम के, when the factory was shut down, जब फैक्ट्री बंद हो गई, Amen, every worker went back home, हर एक कर्मचारी वापस घर चला गया। from Paul till Brother Branham. पौलुस से भाई ब्रैनम तक के, I'll say Brother Branham also. मैं भाई ब्रैनम भी कहूंगा। Then at the end, फिर आखिर में when the factory time was over, जब फैक्ट्री का समय खत्म हो चुका था, remember the message? आपको संदेश याद है? Then came a thunder, तब आया एक गर्जन and here's a big piece moving. और यहाँ पर एक बड़ा महान टुकड़ा हिल रहा है। What is this, brother? भाई ये क्या है? A button has been pushed. एक बटन दबा दिया गया है। Now it will not stop. अब ये रुकेगा नहीं। The magnet is moving. वो चुंबक चाल में It is है। moving, moving, moving. वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, To catch those genes, ताकि उन जीवांशों को पकड़े। those scraps वो छोटी कतरने from the original iron, उस मूल लोहे के टुकड़े में से, those little scraps जो छोटी कतरने थी, taken to the magnet. और चिपक जाती हैं उस where are- चुंबक तक। And where are those iron filings taken? और वे छोटी लोहे की कतरने कहाँ ले जाई जाती हैं? Back to a funnel वापस उस एक कुप्पी में, in the fire, जो कि वापस आग में जाए, that they make back the original iron from where they came. कि वो वापस उसी मूल लोहे को बनाए जहां से वो आए थे। Amen. To make back what God is on earth. ताकि वापस उस खुदा को बनाए जो कि खुदा पृथ्वी पे हो। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? The baptism of fire. आग का बपतिस्मा। And I want to tell you, brother, sister, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, the rapture, वो रैप्चर like a magnet, एक महान चुंबक की the मानिंद, process पut on. जो कि क्रिया चालू Brother हुई Branham थी। said, भाई ब्रैनम ने कहा the bolt didn't go up, जो बोल्ट है वो ऊपर नहीं गया, other pieces didn't go up बाकी के जो हिस्से टुकड़े थे वो नहीं ऊपर गए, because they were not magnetized to that. क्योंकि वो उसके लिए चुंबकीय आकर्षण में नहीं आए थे। They were aluminium. वे तो एल्यूमिनियम थे। Aluminium cannot be magnetized like that. जो एल्यूमिनियम है वो ऐसे खिंचाव में नहीं आ But सकता, iron can. पर जो लोहा है वो आ सकता है। If that is iron, अगर वो लोहा है, this is iron. ये भी लोहा If है। that is God, अगर वो खुदा है, this is God. तो ये भी खुदा है। Amen. Hallelujah. Amen. And when he wrapped the cloud और जब उसने उस बादल को लपेटा over the face, उस चेहरे के चारों ओर, and the current began, और बिजली चालू हो गई, the voice came, आवाज आई, 7 thunders, 7 गर्जन के शब्द, third pole, तीसरा खिंचाव, calling the iron filings उन तमाम लोहे की कतरनों को बुलाता हुआ in the cloud. बादल के अंदर, And अंदर। Amen. to take back home. ताकि वापस घर ले जाए। Oh, we love you, Jesus. ओ हम यीशु आपसे प्यार करते हैं। Can you understand the message? क्या आप संदेश समझ पा रहे हैं? This was the rapture of Enoch. ये था रैप्चर हनोक का। So many things, so many things. बहुतेरी चीजें, But I think I've covered quite many aspects. पर मैं सोचता हूं मैंने बहुत सारे पहलू
देख लिए हैं and you are able to understand और आप समझ पाए हैं why rapture is given in the form of a book of generations. क्यों रैप्चर एक रूप में दिया गया है इस उत्पत्ति की पुस्तक में। The reason is कारण ये है rapture was moving in a family. रैप्चर एक परिवार में आगे बढ़ रहा था। There was no rapture in Cain's family. कोई रैप्चर नहीं था कैन के परिवार में। Cain's first child was Enoch, कैन का तो पहला बेटा हनोक था, but that Enoch was not raptured. पर वो उस हनोक का रैप्चर नहीं हुआ। But this Enoch, पर ये हनोक which came at number 7 जो कि 7वें अंक पे आया after Adam, आदम के बाद, got raptured. उसका रैप्चर हुआ। Are you catching the mystery? क्या भेद पकड़ रहे हैं? So it's not enough to be called Enoch, तो ये काफी नहीं है कि आप केवल हनोक कहलाएं, but it is important to be born in a particular family. और ये महत्वपूर्ण अधिक है कि आप एक खास परिवार में पैदा हो। Are you born? क्या आप पैदा हुए हैं? I'm not going to speak very long tonight मैं आज रात्रि बहुत लंबा नहीं बोलूंगा because I'm a little tired, क्योंकि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, but I believe you can understand the word पर मैं विश्वास करता हूँ वचन समझ पा रहे होंगे and you can catch the mystery और आप भेद पकड़ पा रहे हैं and you can understand और आप समझ सकते हैं that to be born in a family is the prerequisite to be raptured. कि परिवार में पैदा होने के लिए एक पूर्व शर्त है कि आपका रैप्चर हो। That is why he said, इसलिए उसने कहा this rapture that we are talking about ये रैप्चर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं is only for the bride. ये केवल दुल्हन के लिए है। The bride rather is the one that's going to be in the rapture. दुल्हन ही है वो जो कि रैप्चर में जा रही है, That alone. वही केवल अकेली, Nothing but the bride. कुछ और नहीं, केवल दुल्हन, The elected ones. वो जो चुने हुए हैं, Foreknown by God from the beginning. पहले से शुरुआत में खुदा के द्वारा जाने गए, The Father's spiritual genes. पिता के आत्मिक जीवांश। The rapture is only for them रैप्चर केवल उनके लिए ही है and nothing else. और बाकी किसी के लिए नहीं। That is why इसलिए उन जीन्स के सामने आप वर्ड लाइए, आमेन, वाइब्रेशंस चालू हो जाती हैं, आमेन, थिरकना चालू हो जाते हैं, नाचना चालू हो जाता है, Amen. कुछ होना चालू हो जाता है। यस, भाई होगा होगा, ये तो नेचुरल ऐसा होगा क्योंकि जीन्स है ना उस मास्टर डीएनए की। इसी मैसेज को एक सीएनआई चर्च में प्रचार करके देखो, देखते हैं कितने लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। शक्लें देखेंगे अब यूं कहेंगे, क्योंकि समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, सिर और दर्द कर रहा है, ये कब बंद करेंगे यार, जल्दी चलें, घर में पुलाव पकाना है, दोस्त आ रहा है कलकत्ता से। समझ मारी है, ये है हाल लोगों का। लेकिन जो ब्राइड है रात के 11 बजे यहां खड़ी है, आमेन। Why? क्यों? Unsealing. एक खुलासा, An unsealing has taken place. एक खुलासा घट चुका है। Believe me, brother. मेरा विश्वास कीजिए मेरे भाई। Then you saw yourself as that man of 38 years infirmity. आमेन। फिर आपने वो अपने आप को ऐसे देखा, उस मनुष्य के माने जो कि 38 साल से मफलूज था। Then you saw yourself as some Bible character. फिर आपने अपने आप को किसी बाइबल के चरित्र के रूप में देखा। Through all that, इन सब के द्वारा you got unsealed. आपका खुलासा हुआ, आपकी मोहरें तोड़ी गईं। You understood the value of the stamp. आप उस स्टैम्प के मान को, मूल्य को समझ गए। And now you're ready और अब आप तैयार हैं to go home. कि आप घर वापस जाएं। Amen. आमीन। Blessed assurance. धन्य आश्वासन, Jesus is mine. यीशु मेरा है। What the cherubims can't understand. जो करूब नहीं समझ सकते थे, What the angels can't understand. जो दूत नहीं समझ सकते थे, This bride understands. ये दुल्हन समझती है। So, off and on. You understood it? तो आप समझे, खुला और बंद। It was off in the church ages. I mean, these special genes. मेरा मतलब है इन खास जीवांशों से ये बंद थे That's why कलीसिया कालों में। that's why they were called lost ends, इसलिए इन्हें बोला गया छूटे हुए भेद, which others left. जिनको दूसरों ने छोड़ा। They were never opened. ये कभी खोले नहीं गए। But the ministry of the seventh angel आमेन। पर जो 7वें दूत की सेवकाई है, is to unlock those lost ends. आमेन,
कि वो खोल दे, उनके ऊपर से जो ताले हैं वो खोल दे, वो छूटे हुए भेदों के ऊपर then से। what happens? फिर क्या होता है? The complete sequence becomes alive. जो पूरी श्रृंखला है वो जीवित हो जाती है, जागृत हो जाती है, And the whole DNA comes in expression. और पूरा डीएनए अपने प्रदर्शन को देने लगता है। Lord Jesus back on the earth प्रभु again, यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी के ऊपर in वापस flesh. देह के अंदर। Are you Amen. understanding? क्या आप समझ रहे हैं? God bless you. खुदावन आपको आशीष दें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो आज शाम के सुंदर अवसर के लिए कि हम आपके वचन को देख सके। आपका नाम मुबारक हो। हमारे तमाम भूल चूक अपराधों को क्षमा करें, पवित्र लहू से धो के पाक और साफ करके पवित्र आत्मा से भरें, लहू में छिपा के रखें। तौफीक दें कि जब हम यहाँ से जाएं समय से घर पहुँचें और हर चीज़ को ठीक ठाक पाएं। कल भी हमारे रहनुमा हो, जो वचन का बीज बोया गया हमारे जीवनों में 100 गुना फल ला सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, कि बादशाही आए, आपकी मर्ज़ी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, जिस तरह हम माफ़ करते हैं किसी को माफ़ फरमाएं, हमें आजमाइश ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, कि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन एंड आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। और आप लोग भाई बहन निकल सकते हैं यहाँ से और अपने अपने घरों की ओर रवाना हो सकते हैं। मैं जवानों की अटेंडेंस ले रहा हूँ। आज आई थिंक 19th है, 12 को तो मीटिंग थी। अभिलाष मसीह, अभिनव दास, एवनम मार्टिन, आदित्य थॉमस, गॉड ब्लेस यू, एलन गोम्स,